Today's subject is general examination and history taking. Okay. What do you mean by general examination and history taking? Someone? What do you mean by that? Any idea? What history you will be taking? বলো কেউ একজন বলো someone must have some idea. Anyone? Okay, so what is history taking? হয়ে গেছে arrangement? Okay, history taking. What is history taking? So what will be your profession? What is your profession? Future profession क्या है आपका? Doctor. Okay. So anyway, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं जब पेशेंट आते हैं तो देखते हैं. इलाज करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा कि उसको क्या हुआ है. Okay, so how we will get to know what the patient has and what the patient might be happening with inside his or her body by history taking and other examinations. So before you provide a patient with a list of blood tests and also radiological investigations, as a doctor you need to know what the tests you should be giving to her, or what are the blood investigation you should be providing her to do, because you cannot just write every blood investigation and radiological investigation possible, right? You have to filter themselves जे इसका ये आपको complain आ रहा है patient से, so हम ये इनको करने बोलेंगे. So you should be specific. Like someone asks, come and talks to you about your chest pain, what should you do? You won't do any USG CT like randomly any blood test. You will understand कि okay इस जगह पे दिक्कत है, so I need to do suppose chest pain, so you need to do an X-ray and an ECG. That's how you will differentiate between both. If everything is okay, then in my experience most probably it's gas, or if you are inclining towards any pain towards right side of lower abdomen or anything like that, the pain is radiating somewhere, then accordingly you should also check other things and you should tell the patient to do an USG. तो ये इसको कहते हैं ट्रायज करना, कि हमको पहले देखना है, हम सारा कुछ नहीं लिख सकते. एंड if I am suggesting that, I will suggest his blood X-ray, LFT for liver, ऐसे करके. तो ब्लड टेस्ट तो ऐसे करके. तो हिस्ट्री टेकिंग इसका पहले होता है. ओके, so prequel of your investigations are history taking. By taking history you will understand what the patient is about. And general examination, now history taking का दो पार्ट होता है. One is asking the patient. 3-4 पार्ट होता है. ओके, ऐसे करके आपका बुक में शायद नहीं लिखा होगा, आपका बुक में जो पॉइंट में बाद में बोलूंगा वही लिखा होगा, बट दिस इज योर मेन थिंग. ऑब्जर्विंग द पेशेंट. पेशेंट चल के आ रहा है, तो वाचिंग द पेशेंट यू कैन नो सम थिंग्स अबाउट हिम. देन आस्किंग द पेशेंट अबाउट इट, बातचीत करना. एंड थर्डली टच एंड इंस्पेक्ट. ये आपका ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व एंड इंस्पेक्ट, आस्क करना है उसके बारे में, और बाकी सारा कुछ आपको आस्क करना है, कुछ पॉइंट है, एंड उसके बाद टच एंड इंस्पेक्ट. ओके, टच करके देखना है. तो इसमें ये आपका जनरल है. इसके अंदर दो चीज आएगा. एक है जनरल इन्वेस्टिगेशन. जनरल मतलब सारा सिस्टम मिलके एक बात होता है. ओके, उसको जनरल कहते हैं. उसमें कोई विभाग नहीं है कि उसमें हम कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन कर रहे हैं या पल्मोनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कुछ अलग, तो ऐसे करके, या गैस्ट्रो का इन्वेस्टिगेशन कर अलग नहीं है. तो इसको कहते हैं जनरल इन्वेस्टिगेशन. देयर आर सम थिंग्स यू शुड नोटिस इन ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स. ओके, देन we go to systemic investigation. What is systemic? Systemic means the examination of different systems. Like when my general investigation is suggesting towards a cardiovascular anomaly, then I should take my tests further on, and we will focus on the cardiovascular systemic examination. So this is your systemic investigation, and this is your general investigation. So these are the main things you should remember about history taking and general examination. Okay, then these go hand in hand. You are examining the patient, you are taking the history, both. तो फर्स्ट कोई आपको पहले ये आकाश सर ने ये तीनों चीज हमको स्पेशली बोलने को बोला है. हम जब पढ़ते थे तो इतना कुछ हम लोग को नहीं बताता था. सो अभी दिन बदल गया है, आपको पहले से इंटीमेट करना पड़ता है. तो फर्स्ट ईयर में आप ये सब सुन रहे हो, आपके लिए अच्छी बात है. क्या क्या सुन रहे हो? नाउ व्हेन द पेशेंट कम्स टू यू,
when the patient comes to you. Okay, is he a patient? Should you call him a patient? No, because he or she might not be suffering from any diseases. Okay, he is just complaining कि मेरा ये हो रहा है, ये हो रहा है. Okay, sometimes all that becomes nothing. The patient is just anxious or nothing is happening. So when the patient comes to you, until and unless you can diagnose something wrong about him or about her, he or she should be called subject. Okay, he is just a subject to you. So he is subject until and unless he or she gets any diagnosis from you. So subject is when the patient comes and any diagnosis found, any diagnosis or possible diagnosis, आप सस्पेक्ट कर रहे हो ये हो सकता है किसी किसी चीज को, और किसी पेशेंट को आपको लगेगा कि he is normal, so he remains a subject. He doesn't convert from the subject to the patient. Okay, because no problem is with the patient, no, with the subject. So any diagnosis, any possible or probable diagnosis, okay, so then the subject goes to patient mode. Okay, because there is something wrong with him or her, so we should call him or her the patient now. This is the main thing. ये उतना नहीं पूछेगा, just for your idea कि not everyone is patient, not everyone who comes to you is a patient. Okay, all are subjects. Only when you find any probable or possible or likely diagnosis in your mind after asking all the relevant questions, you can call him or her as patient. So first is that. Second, ये आपको पूछ सकता है व्हाट इज साइंस एंड सिम्टम्स. ये आप हमेशा सुनते हो साइंस एंड सिम्टम्स एक साथ, लेकिन व्हाट आर द साइंस एंड व्हाट आर द सिम्टम्स. साइंस इज अ थिंग, someone asked me something. Okay, sign is a thing which you observe. Suppose that ladka is coming along. Okay, I am observing him. तो okay, what I am observing, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसका चलन ऐसा है, उसका गेट ऐसा है, उसका पोस्चर ऐसा है. ओके, उसका आंखें में ऐसा हो रहा है, उसका इधर में कुछ येलोइश है, डिस्कलरेशन है, या उसका इधर पे हाथ में जब पिंच करता हूँ. ओके, वेरी गुड पॉइंट. हाथ में जब पिंच करता हूँ तो वो स्किन सही से वापस नहीं आ रहा है, या ये ज्यादा सफेद लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबली एनीमिक. ओके, तो ये सब देखने में जो आपको देखने को मिल रहा है, द पेशेंट इज नॉट कंप्लेनिंग, पेशेंट इज नॉट aware about it, पेशेंट इज आस्किंग डॉक्टर बाबू दुर्बल लगे, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट, आई यूजुअली फील अ लिटिल बिट वीक ड्यूरिंग ऑल माय वर्क्स एंड ऑल. मैं जब चलता हूँ थोड़ी चलने के बाद मैं थक जाता हूँ, ये सब कंप्लेन कर रहे हैं. बट यू आर looking at anemic prerequisites. So that's your sign, which is you observing about the patient. Symptoms are the patient complaints, like patient आके आपको बोल रहा है डॉक्टर वो यही है वही है. Those are the symptoms. Okay, and these are the signs. So signs are observed by doctors or practitioners or clinicians. Symptoms are complained by patient. एक साथ बोलने का होता है. Now you have to relate the sign and symptoms. पेशेंट का कॉम्प्लेन ये है, मतलब दैट्स इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है, हमको देखने लग रहा है ऐसा, तो क्या हो सकता है. ओके, पेशेंट इज कंप्लेनिंग अबाउट एब्डोमिनल पेन. ओके, एंड आई एम एब्डोमिनल पेन, राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन, आई एम सीइंग बिग बेली. ओके, बिग बेली, एंड आफ्टर आस्किंग हिस्ट्री, ओके, आई एम गेटिंग अल्कोहल कंज्यूमिंग, फास्ट फूड कंज्यूमिंग, so most probably I will incline towards what? Hepatitis, something about problem in liver. Okay, or just CLD, chronic liver disease, or DCLD, decompensated chronic liver disease. So difference between sign and symptom you understood. Those big belly, pot belly, patient thinks it's normal, but to me that's a sign. Okay, so sign is what I observe, symptom is patient जो complain कर रहे हैं डॉक्टर बाबू पेटे डांदी के बैठा है, কেন ডান দিকে ব্যথা হয়, সিএলডি লিভার ডিজিজে ব্যথা হতে পারে তো এই সাইডে. ওকে, তার সাথে লিভার ডিজিজ আছে মানে মোস্ট প্রবলি খাওয়া দাওয়া ঠিক করে না, গ্যাস্ট্রাইটিস, তো ডান দিকে না পেটের বাদিকেও ব্যথা হতে পারে. দ্য পেন শুড হ্যাভ শুড অলসো বি ইন দ্য লেফট সাইড. दोस आर द सिम्टम्स. पेशेंट इज सेइंग खेते इच्छा करे ना. ओके, आई मीन मैं खा नहीं सकता, खाने के बाद बहुत गैस हो जाता है, ये सब सिम्टम है. साइन क्या है, मैं देख रहा हूँ ओके उसका पेट ऐसे बड़ा है इस साइड में, उसका एब्सोल्युटली कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, वो एसाइटिस है क्या नहीं, मैं आंखों से क्या क्या फील कर सकता हूँ, वो है आपका सिम्टम, साइन.
तो ये सब और प्री रिक्विजिट ये आपका दिया गया है, पहले ये नहीं था हमारे टाइम में, पुराने जमाने में, तो ज्यादा पुराना नहीं, 10 साल पुराना है। एनीवे क्या है प्री रिक्विजिट मतलब वेयर शुड यू सी द पेशेंट, ऐसे करके लाइट जला के एक अच्छा जगह होना चाहिए उधर पे, लाइटनिंग अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है कि आपके पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ओके, लाइक लिटिल टॉर्चेस एंड ऑल, बीपी मशीन, यू नो रेस्पिरेटरी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब इक्विपमेंट्स, वो सब इक्विपमेंट्स के बारे में हम पूरा आएंगे कैसे कैसे। तो लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर के पास कुछ नहीं है, डॉक्टर मेरे तरह ऐसे चले गए, पेशेंट आ गए, मैं तो कुछ नहीं नाप पाऊंगा, बीपी नहीं नाप पाऊंगा, पास नहीं देख पाऊंगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं देख पाऊंगा, राइट, बट आई हैव टू आल्सो सी ऑल दोस थिंग्स, प्रॉपर इक्विपमेंट्स फिर मेरे पास भी होना चाहिए, जिधर पे जा रहा हूँ इधर मेरे पास ना हो तो उधर होना चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए प्रॉपर, उसका स्किन में तो कुछ हो सकता है फंगल इन्फेक्शन कुछ वगैरह, उसको पता है भी नहीं, मुझे देख के लगा रहे ये तो फंगल इन्फेक्शन लग रहा है, हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक डर्माटाइटिस में देख रहा हो, स्किन का कुछ देख रहा हो, लाइटिंग अगर अच्छा ना हो तो मिस हो सकता है, ठीक है, तो लाइटिंग वगैरह अच्छा होना चाहिए, और भी कोई एनगॉट्स नेक वेन्स कुछ भी, मतलब कोई कोई छोटा सा स्कार वो सब मुझे मिस हो सकता है, ठीक है, अगर लाइटिंग एंड ऑल्सो रूम इज द रूम इज यू नो शुड बी एयरी, यू नो enough big to accommodate some people, ऐसे करके एक छोटा सा घुपची के अंदर तुम पेशेंट देख रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, एक अच्छा जगह चाहिए ताकि आपको मैनिपुलेट करना पड़े, मैनूवर करना पड़े, बोलना पड़े पेशेंट को कि थोड़ा चल के दिखाओ, हाँ, तो अच्छे एक क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, यू नो सूटेबल फॉर पेशेंट सीइंग और पेशेंट ऑब्जर्वेशन, तो ये सब लाइटिंग इक्विपमेंट ये सब सही करना है, ओके, पेशेंट लोड उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने पड़ेगा, सो डॉक्टर एंड पेशेंट दे शुड बी इन ए प्रॉपर एनवायरनमेंट, ओके, सब कोई चिल्ला रहा है देखिए देखिए डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, द मेंटेन यू नो डेकोरम शुड बी मेंटेन्ड, क्योंकि ताकि डॉक्टर पेशेंट के साथ एटलीस्ट 5 मिनट अच्छे से पूरा हिस्ट्री ले सके, तो ये सब वगैरह प्रीरिक्विजिट हमारे समय में उतना नहीं बोलता था, लेकिन ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट, ओके, सो ये सब आपका पहले की बात है, अब मैं एक एक करके जाऊंगा कहा वो सब्जेक्ट आपके पास आया है, आपको जज करना है, ये सब ऑब्जर्व करना है, पूछना है, टच करके इंस्पेक्ट करना है, ना सिस्टेमिक आपको इधर नहीं होगा, जब अलग अलग करके सारा सिस्टम बताया जाएगा तब एक एक सिस्टम के आपको शुरू होगा, ठीक है, ये सिस्टम का क्या है, ये सिस्टम में क्या है, नाउ व्हेन एज ए क्लिनिशियन यू विल डू द इन्वेस्टिगेशन ऑन वार्ड, you will do all the systemic investigations together, all the systemic investigation you will do one by one, but here you are just in first year, you have no clinical need now, so the systemic examination will be taught, you know, during the what can I say, during the teaching of those practical sessions of those systems only, like cardiovascular system में जब cardiovascular का practical होगा, ओके आपको वो सब करना पड़ेगा, मैं जनरल खत्म करने के बाद इसके बारे में थोड़ा बोल दूंगा, ठीक है, पहले ही बोल देते हैं, बस 4 लाइन इसमें रखना है, इंस्पेक्शन, जनरल में आपको ये सब करना है, ऑब्जर्व करना है, आस्क करना है, आप टच कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिस्टेमिक में 4 भाग होता है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब आप पूरा बॉडी इंस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, विदाउट टचिंग द फिंगर, इंस्पेक्शन मींस विदाउट टचिंग द फिंगर, नाउ आता है पैल्पेशन, पैल्पेशन मतलब समझ ही रहे हो, पैल्पेशन उंगली से करना पड़ेगा, सो इंस्पेक्शन हो गया, पैल्पेशन हो गया, पैल्पेशन मतलब उंगली से पहले करोगे, फिर पार्कशन, पार्कशन मतलब our body is, you know, some areas are hollow inside, not hollow but they contain air, okay, so when these things contain air there are certain sounds either by, you know, auscultation or inspection, ये auscultation, और auscultation मतलब आपका जो स्टेथो सुनते हो उसको auscultation कहते हैं, और जो हम उंगली से सुनते हो पार्कस कहते हैं, कभी कभार जब ये चेस्ट में ऐसे पानी जमा होता है, ये सब होता है, तो ऐसे करेंगे तो अलग साउंड आएगा, ओके, पेट पे पानी जमा हुआ, बहुत बड़ी पेट है, CLD है, क्रॉनिक लिवर डिजीज वगैरह है, उनका पेट में पानी जमा हुआ है, उनका कुछ अलग तरीके का आवाज आएगा, ठीक है, तो ये सब आपका आप उंगली से कर सकते हो, उसको कहते हैं परकशन, okay, so palpation means only touching and, you know, moving your skin with like this, percussion means हम कैसे करते हैं, चेस्ट एरिया में सपोज देख रहे हैं, ऐसे करके उंगली रखते हैं, ओके, एंड ऐसे ऐसे करके परकस करते हैं, ये जो ऐसे रेजोनेंस क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, वो जो रेजोनेंस अंदर में क्रिएट हो रहा है वो आपको बाय लिसनिंग, नॉट बाय स्टेथो, आप बाय एयर आपके पास आवाज आ रहा है, आप सुन रहे हो, ठीक है, तो उसको परकशन कहेंगे,
वो कभी काफी जगह पे कर सकते हैं, सिस्टेमिक पे आपको पता चलेगा एक एक कौन कौन सा सिस्टम में ये परकशन इंपॉर्टेंट होता है. फाइनली ऑस्कल्टेशन, everything do with have to do with the stetho is called auscultation. तो ये 4 पॉइंट आपका सिस्टेमिक में रहेगा, जनरल में ये 3 रहेगा. ठीक है, ये 3 आपको ऑफिशियली कहीं नहीं लिखने को मिलेगा, बट व्हाट वी डू इज दिस. नाउ इसके अंदर हम फोकस करेंगे इसके अंदर. ओके, अभी आज के क्या क्या ऑब्जर्व करना है, क्या क्या पूछना है और क्या क्या हम टच करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं. राइट, सो व्हाट शुड वी डू. काफी पॉइंट है आपका. ओके, try to mug up first, because if you don't mug up it will not come along. 11 12 में जब पढ़ते थे, ओके, हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो उधर पे काफी चीज आपको रटना पड़ता था. निमोनिक तैयार करके कुछ भी करके ये निमोनिक याद कीजिए, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. एक बार निमोनिक तैयार हो जाए बाकी, और आप अभी रिलेट नहीं कर सकते, काफी पॉइंट आपको मिस हो जाएगा. डिस्पाइट बीइंग सीइंग सो मच पेशेंट्स, आई आल्सो मिस 1 or 2 पॉइंट्स जो हमको थोड़ा बाद में याद आता है पेशेंट को देखते देखते. जैसे ये बोलते बोलते याद आ गया कि अच्छा ये भी मुझे देखना था. ओके, सो दैट्स व्हाई even professional doctors can miss 1 or 2 points because there are a lot of things to see, no? So you guys should mug up. Okay, keep it in your brain. এটা মুছে দিচ্ছি, এটা এখন কিছু করার নেই. ওকে, আরে থাক. So first a subject, I have seen a lot of patients, so by habit I won't say subject, I might say patient, so don't worry. Okay, when a patient comes to you, what should you see first, what should you do? Okay, so you are seeing a lot of things, वो थोड़ा बाद में आते हैं. पहले आपको जो जरूरी है, बेहद जरूरी है ये सब करना, वो आपको पहले आएंगे. क्या है, क्या क्या कुछ वाइटल साइन होते हैं, वो नापना पड़ता है. टेल मी सम वाइटल साइंस यू नो अबाउट. What are the vital signs? BP. What do you mean by BP? Blood pressure. प्रेशर नापना है आपको. ठीक. पल्स, पल्स देखना है. ठीक है, फिर थर्ड और एक पॉइंट बताओ, रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी इज नॉर्मल. व्हाट रेस्पिरेटरी रेट इज नॉर्मल বলা হয়েছে তোমাদের, বলেছে 12 to 16 per minute is normal. ओके, अगर आपको गलत जानना है तो सही रेंज बताना है. बीपी का आपको पता है क्या है, सिस्टोलिक बीपी का नॉर्मल रेंज बताओ. एक नहीं होता है, रेंज होता है. नहीं, आदमी अलग अलग है तो रेंज भी अलग अलग होंगे. कितना हो सकता है, 110 to 130. या गुड, 130 130 भी ऐसे लिखना. एसबीपी इज नॉर्मल रेंज इज दिस. डायस्टोलिक में क्या होगा, एसबी मतलब सिस्टोलिक. ओके, डायस्टोलिक में कत होते पारे, 70 to 90 कर दो. या ठीक है, 90 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, 72 we can put 85 89. ओके, नो प्रॉब्लम. सो डायस्टोलिक इज लाइक दैट सिस्टम. ये जस्ट बस वेरी, ये भी वेरी कर सकता है. किसी का 100/60 है मतलब वो एबनॉर्मल नहीं है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. वी हैव टू एसेस द पेशेंट कि किसी का कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका लाइफस्टाइल में हैम्पर पड़ रहा है क्या नहीं, हैम्पर हो रहा है, उसका दिक्कत हो रहा है. दैट्स व्हाई यू नीड टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज़ समवन माइट हैव continuously BP of 102 and 62, but that doesn't mean the patient is sick. Okay, so that's it. तो ये है आपका. पल्स का नॉर्मल रेंज बताइए. 60 থেকে 75. okay, sometimes 80 is also normal. 72 हम कहते हैं, लेकिन अगर आप नापोगे इस घर में शायद 2 या 3 लोगों का ही एग्जैक्ट 72 आएगा. It will be inside a range. That's why in medicine we always provide range. In medicine मतलब in case of doctors we always provide range. There is nothing static in a MBBS profession. Okay, everything changes within a range. So this is a range, this is range, this is your range. Respiratory rate के बाद क्या आ सकता है, BP हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, और कुछ याद कर सकते हो. टेम्परेचर देखना है, ये तुम टच करती पता चल जाएगा पेशेंट को, या पूछ लेना গা গরম থাকে. হ্যাঁ, ওকে, বাট তুমি নিজে টাচ করেই টের পেয়ে যাবে. पेशेंट অনেক সময় বুঝতে পারছে না, বলছে স্যার ऐसा भी हुआ है कि बाहर से सर धूप में थे इसलिए थोड़ा
शरीर गर्म हो गया, मैं देख रहा हूँ 102 फीवर है, समझ में, गांव में जो लोग रहते हैं वो इस सब को इतना भाव नहीं देते, ये तो होता ही रहता है डॉक्टर साहब, ठीक है, लेकिन दिस इज ए कंटिन्यूअस केस ऑफ फीवर, उसका कंटिन्यू रोज फीवर आ रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन फैला हुआ है, बट ही थिंक्स इट्स नॉर्मल बिकॉज ही वर्क्स इन कड़ी धूप एवरी डे। ओके, सो ऐसा गांव में होता है, तुम भी देखे होंगे, तुम्हारा कुछ रिलेटिव भी गांव में होंगे, मेरा काफी रिलेटिव गांव में है, वो उसका ये सब रोज का नाटक है। ओके, दवाई नहीं खाते, बोलते कुछ नहीं होगा, बाद में जब बिस्तर में पड़ जाते हैं तब बोलते दवाई दीजिए, तो ऐसा सब किसी में साथ ही होता है, आपके साथ भी शायद ऑलरेडी हो गया है। तो टेम्परेचर, ओके, प्रिवेंशन नहीं करते, क्योर चाहते हैं, टेम्परेचर देखना है, व्हाट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोलो, এইটার একটা পয়েন্ট 98.4 কি सेंटीग्रेड चले আসলে 37 ऐसा होता है, उस रेंज में होता है, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं, but 98.4 Fahrenheit. Okay, so this is a normal, but so anything more than this is hyper temperature. But when should we call it a fever? Okay, around लगभग 100 100 ऊपर मोटामोटी होले तो हमरा ज्वर बोलते पारो, फीवर कह सकते हैं, ठीक है। 99 पे हम उतना कुछ करते नहीं है, बोलता है पट्टी दे दो, ओके, 99 फीवर, ये जो धूप में जो घूमने के बाद ये 99 हो सकता है, लेकिन 100 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, समझ रहे हो, अगर 100 के ऊपर चला गया द पेशेंट बिकम्स सिक, उसको क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक, तब पेशेंट बन गया, ठीक है, हिज बॉडी इज नॉट टॉलरेटिंग दैट हीट, दैट्स व्हाई he had become patient, কিছু না গ্লুকোজ জল খাইয়ে দেবে, একটু হাওয়া করবে, এমনি উঠে দাঁড়িয়ে যাবে, because his temperature will drop down, তাই না, হাসার কিছু নেই মা, ওয়ার্ডে যখন ম্যানেজ করতে হবে না 25 জনের হিট স্ট্রোক, তখন বুঝতে পারবে। বিপি, পালস, রেসপিরেটরি রেট, টেম্পারেচার, আর কি বাকি রইলো, একটা জিনিস বাকি আছে, লাংসের ব্যাপারে কিছু আন্দাজ করতে পারছো কি, SpO2, ওকে, SpO2 মানে কি, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, SpO2 নরমাল আমরা সব সময় থাকি, আমাদের অলওয়েজ এটা দেখতে হবে 95% এর অ্যাবাভ হতে হয়, ঠিক আছে, অ্যাবাভ 95%, অলওয়েজ শুড বি অ্যাবাভ 95%, ओके, 95% नीचे आछे मानी उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है, अगर कोई कई कई लोग होते हैं 91-92% में भी वो लोग कुछ प्रॉब्लम कुछ कॉम्प्लेन नहीं करते बिकॉज देयर बॉडी इज अकस्टम लाइक दैट, अगेन पेशेंट फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, रोज बहुत काम करते हैं, उनका थोड़ा बहुत सांस का तकलीफ होता है, वो उनके लिए नॉर्मल है, ओके, या जो लोग काफी स्मोक करते हैं, ওকে, স্মোক করতে 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 ওই যে বলছিলাম বডি হাইপক্সিক হয়ে যায়, সেই হিমোগ্লোবিন বাড়া কমা গুলো তো বলেছিলাম, তো ওদের কি হয়, অক্সিজেন স্যাচুরেশন হচ্ছে দেখা গেল 93% হয়ে আছে, 94-92% হয়ে আছে, ঠিক আছে, लेकिन उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है उनका शरीर में, हिज बॉडी इज एक्स्टमाइज्ड बाय दैट, सो बट ट्रीटमेंट तो जरूरी है ना, तो क्योंकि अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, को 5 साल बाद होगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 10 साल बाद जब वो उम्र और भी बढ़ जाएगा, देन ही विल नीड always need an oxygen mask, okay, that's very painful, तो सैचुरेशन SpO2, ये सिर्फ 5 पॉइंट हो गया, ठीक है, तो ये आपका वाइटल साइंस वाला है, ओके, तो वाइटल साइंस ये लिखो 5, उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना है, क्या क्या ऑब्जर्व करोगे, टच एंड इंस्पेक्ट और एंड ऑब्जर्व, ये सब कुछ करोगे, ठीक है, এবার ऑब्जर्वेशन है अच्छी, मुझे एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से शुरू करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों में ऑब्जर्वेशन में लास्ट में बोलूंगा, अब टच एंड इंस्पेक्ट आऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ते थे या अभी भी जब आपको आंसर बोलना है, ये सब आपको बहुत पहले बोलना है, ठीक है, बाकी ऑब्जर्वेशन का पॉइंट फाइनल ईयर जब मेडिसिन में हम पढ़ते थे तभी वो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट हमको जोड़ दिया गया था, लेकिन दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट, वो हम बाद में बताएंगे कि पेशेंट आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट बोले बैठिए बीपी लेते हैं, ऐसी नहीं, we actually as a doctors we could not help but notice some things, so that will I will tell you, आपको जब बाद में पढ़ा हो जाएगा जो वो उसका क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आप भी देखना कि कुछ चीज आपको देखने से ही पता चल जाएगा, वो इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए इसमें, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं, हम बोलेंगे बाद में। ये आपका वाइटल साइन, फिर इसके बाद आपका आता है 5-6 पॉइंट, एक के बाद एक है, मैं कंटिन्यू बोलूंगा, लिखो, पैलर, PALLOR, पैलर, इक्टेरस, साइनेसिस, क्लबिंग, लिखते रहो, पैलर, PALLOR, इक्टेरस, इक्टेरस जॉन्डिस में आप लिखे हो, पढ़े हो, क्लबिंग लिखो, साइनोसिस लिखो, एडिमा लिखो,
ये रटा हुआ है फर्स्ट ईयर से। तो पैरस इक्टेरस, पैलर इक्टेरस क्लबिंग, साइनोसिस। आप जितना हो सके लिखो, मैं इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। एडिमा, engorged veins, lymph nodes, swellings. Okay. So, and another thing, these all things are irrespective of the person is male or female. Okay. वो मेल है या फीमेल है, आपको सब कुछ पूछना पड़ेगा। ये है engorged veins. Okay, engorged veins, swellings, lymph nodes. না না, নরমাল লিম্ফ নোড আর হচ্ছে নরমাল সোয়েলিং। ধরো তোমার কোথাও লেগে ফুলে গেছে, লাইক आई वेंट टू प्ले यस्टरडे, मेरा पैर इधर पे सूजा हुआ है इतना, ঠিক है, দ্যাটস নট বিকজ অফ লিম্ফ নোডস, দ্যাটস জেনারেলাইজ সোয়েলিং, তাই না? বা কারুর ধরো হার্নিয়া আছে, তারও তো সোয়েলিং থাকতে পারে, তো সোয়েলিং আলাদা, বুঝতে পারলে? ওকে, প্যালার, ইকটেরাস, ক্লাবিং, সায়ানোসিস, ইডিমা, এনগর্জড ভেন্স, ওকে, লিম্ফ নোডস, সোয়েলিংস, আরো আছে। তারপর হচ্ছে স্কার্স, स्किन, स्कार्स हो गया, स्किन हो गया, एंड या इतना ही देख लो। इडिमा लिख दिए हैं, सोलिंग लिख दिए हैं। ओके, লিখেছো সবগুলো? এবার আমি এক এক করে এক্সপ্লেন করব। লেখা হয়ে গেলে বলো। লিখেছো সবাই? কেন লিখোনি? লিখেছো না বললে যে? ओ এইটা स्वेलिंग, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा क्या है, कौन सा है और कैसे देखोगे, ठीक है? ওকে, একদিন চলে আসো। এই ও তুমি চলে আসো, এখানে বসো তো। কিছু হবে না, এরপর সবাই ওরা সবার উপরে করবে, আমি তোমার উপরে করব, তোমারটা বেটার হবে। ওখানে প্যালার দেখতে গিয়ে খুঁচি দেবে, তোমাকে তো আমি দেখবো, বসো। ओके नाउ ए आप इधर आ जाओ। आई नीड 2% साइड बाय साइड, जो मैं उनके साथ करूंगा आपको रिपीट करना है। 2% साइड बाय साइड हो जाओ, दो दो करके ग्रुप बना लो। या एनीवन उधर से भी आ सकता है, जस्ट मेक टू इच, पास बैठो, एक के ऊपर करो। पहले नहीं करोगे, पहले देखोगे। ओके लिसन, अभी वो हड़बड़ी हो जाएगा, सब कुछ दिखा देते फिर आप करना। ओके, ये आपको एग्जाम हॉल में करना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू डू इट बाय योर हैंड्स, प्रैक्टिस इट बाय योर हैंड्स। इफ यू डोंट डू इट, एग्जाम हॉल में कुछ नहीं कर पाओगे। सो नाउ टेल मी व्हाट इज पैलर? पैलर का मतलब क्या होता है? रेडनेस। ओके, ए बाबू, पैलर माने কি? এনিওয়ে, প্যালার মানে হচ্ছে ল্যাক অফ রেডনেস বা রেডনেস। অ্যানিমিয়া তো ডাইরেক্ট হতে পারে। গুড, তুমি ঠিকই বলেছো। প্যালার দেখে কি দেখে তখন বলবো অ্যানিমিয়া দেখে। ওকে, বাট প্যালার ইজ নট অ্যানিমিয়া। সো প্যালার মিন্स रेडनेस, फेंट रेडनेस कम हो रहा है, लैक ऑफ रेडनेस, किसी को भी कह सकते हो। दिस इज योर पैलर। ओके, इक्टेरस माने কি? What is icterus? Jaundice. Yellowish discoloration. Okay. So now, if yellowish discoloration due to jaundice, then it should be called icterus. Okay. तो पैलर कहाँ आपको दिख सकता है? এইবার চলে এসো এইখানে। সব বইতে আছে, সবকিছু লেখার দরকার নেই, বোঝো আর পয়েন্ট গুলো লিখে নাও, বইতে তো আরো ভালো করে লেখা আছে। বসো। প্যালার কোথায় কোথায় দেখতে পারি? फ्रॉम इन व्हिच प्लेसेस वी कैन सी पैलर, वी कैन नोटिस पैलर? बताओ, किसी को पता है? ओके, ঠিক আছে, তোমরা মোটামুটি জানো, হাত দাও।
সবার প্রথমে আমরা চোখে দেখি, আমি হাত দিয়ে শুরু করি, ये देखो उनका हाथ देखो लाल है, why it is red, because of all the capillaries, ক্যাপিলারি ওখানে পাচ্ছ, যা যা ক্যাপিলারি ওখানে আছে সেটার জন্য আমরা পাচ্ছি। এখানে কি থাকে, ক্যাপিলারি থাকে, আর্টারি ভেন কিন্তু থাকে না। ওকে, সো when I am pressing this, okay, see the coming back of the redness is so fast। अपने हाथ में करो, দেখো প্রেস করো, হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে, বাট ছাড়লে খুব ইজিলি চলে আসছে, দ্যাট মিন্স ইওর ক্যাপিলারিজ আর ফিলিং ওয়েল। তার মানে অ্যানিমিয়ার এখানে প্রবলেম তুমি পাচ্ছ না। বাট ইন সাম কেসেস ইউ উইল সি यू नो द रेडनेस रिटर्न वेरी लेट एंड ऑल्सो ये ज्यादा व्हाइट होगा, ये काफी रेड है, मतलब यू नो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका हीमोग्लोबिन अच्छा ही होगा। नाउ कम टू योर आई। ओके, প্যালের কোথায় দেখি, এই কথা বললে জিজ্ঞেস করব, প্যালের কোথায় দেখি আমরা, হাতের পরে, আইতে কোথায়, কনজাংটাইভা। ওকে, কোথায়, আপার প্যালপেব্রাল কনজাংটাইভা এন্ড লোয়ার কনজাংটাইভা। ঠিক, কোথায় দেখবো, আপার বললাম, নিচের দিকে তাকাও, পেশেন্টকে কি বলবে। ওকে, সো অলওয়েজ ইউ নো stand in front of the patient in which side you are comfortable। দেখো আমি ডান দিকে কমফোর্টেবল, আমি ডান দিকে। if you are lefty then of course you should do test like that, কারণ তোমায় তো এইগুলো বাঁ হাত দিয়ে ম্যানুভার করতে হবে না। so if you are a lefty stand accordingly। স্যার पूछेंगे कि बाएं साइड में क्यों खड़े हो, tell me I am a lefty sir, I will have, কারণ তুমি ডান হাতি হলে এইভাবে কি করে দেখবে, you will have to see like this না। so you have to manage decorum, ঠিকঠাক করে না দেখলে এক পরে কোনো প্রবলেম হবে না, বাট এখন নাম্বার মাইনাস হয়ে যাবে, খুব ঝাড় খাবে পরীক্ষার হলে। এনিওয়ে, তাহলে এবার পেশেন্টকে কি বলবে, এমনি আমি দাঁড়িয়ে গেলাম দেখে নিলাম ওরকম না, পেশেন্টকে আগে আমায় এক্সপ্লেন করতে হবে যে ঠিক আছে আপনি এখানে আসুন, আমি এখানে আপনার কিছু এক্সামিন করব, ঠিক আছে। আমি এটা প্রথমে করিনি তোমাদের দেখানোর জন্য, জাস্ট এমনি, বাট প্রথমে সবসময় বলবে যে আমি আপনার উপর এই টেস্টগুলো করতে চলেছি, বিকজ দ্য पेशेंट शुड ऑलवेज हैव द राइट टू नो। आप एक अनजान जगह पे अनजान आदमी के पास गए हो, बात नहीं होना चाहिए बेटे, हाँ, और बात होंगे तो ये सारा आपको एक्सप्लेन कराऊंगा बैठ खड़े होकर के, एक्सप्लेन नहीं करोगे तो बाहर, उतना वक्त है नहीं तो, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज एक्सप्लेन द पेशेंट कि देखो আমি আপনার এইগুলো এগুলো করব, कि क्योंकि भाई अनजान आदमी को, एक अनजान आदमी के पास आप गए हो, ओके, उसको आप कहीं भी टच नहीं करने दे सकते विदाउट एनी यू नो रीजन। सो वो उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, ओके। एंड ऑल्सो यू शुड नो कि व्हाट इज हैपनिंग टू यू, राइट, वो क्या देख रहे हैं, कोई ऐसे क्यों करेगा, তো उसको বলনা চাইয়ে যে আমি আপনার অ্যানিমিয়ার জিনিসগুলো চেক করব, একটু এই জায়গাগুলো আমি দেখব, কিছু না, জাস্ট এ ভার্বাল কনসেন্ট। কনসেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, मैं आपका शरीर में टच करने वाला हूं तो एवरीवन शुड टेक कॉन्सेंट फ्रॉम एवरीवन, ঠিক আছে। এবার বলে দিলাম, এবার বললাম ঠিক আছে যা যা বলবো, which ever thing I am talking to you, and yeah use local language in case of patients because this is very important। अब अगर तमिल में जाएंगे तो उधर पे इंग्लिश में, यूज एनी कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश में उधर पे बात होता है, ठीक है। साउथ इंडिया में कभी मेरा दोस्त, काफी दोस्त पढ़ रहे हैं, पहले वो तो हिंदी में बात करता था, फिर 6 महीना 7 महीना हो गया तो लोकल कुछ चीज में वो फ्लुएंट हो गया, तमिल में, तेलुगु में, तो अब वो कह सकता है। लेकिन आप लोकल, क्योंकि आपका ज्यादातर पेशेंट लोकल ही होंगे, बाहर से कौन आएंगे, बंगाल में आए हो तो बंगाल थोड़ा थोड़ा समझ लो, नहीं तो आप पेशेंट जब देखोगे कुछ नहीं देख पाओगे, वो पेशेंट कहेंगे एक, तुम समझोगे एक, ऐसा होता है। तो फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा बंगाली सीखो, बाद में बहुत दिक्कत होती है, नहीं तो इंटर्नशिप में डायरेक्ट बंगाली सीखने में काफी दिक्कत होती है, वक्त नहीं मिलेगा तुमको। तो এনিওয়ে হোয়াট আই এম টিং, আমি তোমাদের অ্যানিমিয়া জিনিসগুলো এই সমস্ত জায়গাগুলো বলেছি ওগুলো এক এক করে দেখবো, বসে পড়ো। দেখে কি বলবে এবার, উপর দিকে তাকাও, উপর দিকে তাকালে আমি কি দেখলাম, এটা আপার বালবার কনজাংটিভা, এটা হচ্ছে লোয়ার প্যালপেব্রাল কনজাংটিভা, কনজাংটিভার পার্টগুলো আছে পড়বে, উপরে আপার বালবার আছে ওটাও দেখবো। লোয়ার প্যালপেব্রাল দেখার জন্য उसको क्या करना पड़ेगा, বললাম উপর দেখো, উপর দেখো, এই যে আমি নিচের এখানটা দেখে নিলাম, এই দেখো ওর এখানে ভালো রেড দেখা যাচ্ছে, ওই দিক দেখো, and always see both sides, never miss one, okay, you should see both sides, মানে আমার এগুলো অটোমেটিক হয়ে গেছে যেহেতু আমি করেছি, বাট ইউ শুড অলওয়েজ অ্যানিমিয়া, হ্যাঁ হয়ে গেছে, নট লাইক দ্যাট, ইউ শুড চেক বোথ আইজ, ওকে, বিকজ ওই চোখটার কি দোষ করেছে, ও কেন বাদ রয়ে গেল, ওকে রাইট। সো চোখ হয়ে গেল, হাত দেখবে, দু হাতি এরকম ভাবে প্রত্যেকটা আঙুল এরকম করে দেখবে, দুটো তিনটে আঙুল অ্যাটলিস্ট দেখবে, এখানে পিঞ্চ করে দেখবে কালার আছে কেমন, ঠিক আছে, ঠিকঠাক করে রিটার্ন আসছে কিনা কালার, দুটো হাতি দেখবে স্বাভাবিকভাবে। হ্যাঁ, যদি তুমি সেরকম পায়ের তলায় অ্যাজ সাচ এখন করানোর দরকার নেই, বাট অনেক সময় আমরা পায়ের তলাও দেখি, ओके, डॉर्सम ऑफ द फुट वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सब चीज में आप देख सकते हो। और ये तो लोअर पैल्पेब्रल होलो, अपर बल्बर में क्या करोगे, नीचे देखो,
হ্যাঁ এই যে উপরে দেখলাম ওখানটাও মোটামুটি লাল আছে, ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই, দুটো চোখেই দেখবে। तो पैलर आपका हो गया। फिर आपका इक्टेरस। ओके, इक्टेरस क्या देखना है? इक्टेरस देखना है कि किसी जगह येलो डिस्कलरेशन है क्या नहीं। इक्टेरस अब आपको पता होना चाहिए कि किधर किधर प्रेसिपिटेट होता है, हाथ में हो सकता है, ট্রাঙ্ক में हो सकता है, ये सब जगह पे होता है येलोइश ডিসকালারেশন। আরেকটা কোথায় হয় খুব ইম্পর্টেন্ট, স্ক্লেরাতে। সবার আগে আমি দূর থেকে এলেই আমি দেখতে পাবো, ঠিক আছে। अगर मैं नहीं देख रहा हूँ तो अच्छे के দেখি উপর দিকে চোখটা করো, হ্যাঁ আই উইল আমি বলবো যে যতটা সম্ভব স্ক্লেরা আমি দেখতে পারি আমি অবজার্ভ করবো, ওই চোখটা দেখাও। ওকে ঠিক আছে, হাত ফাত দেখে নিলাম। পায়ের তলা, এখানে হচ্ছে অনেক সময় পায়ের তলা प्रेसिपिटेट করে, ओके पैर के नीचे में, वो भी आपको देखना पड़ेगा इक्टेरस में। तो ये सब आपको देखना है इक्टेरस में। ओके नाउ क्लबिंग, व्हाट इज क्लबिंग? नाउ সাম ক্লাবিং ইজ ইওর হ্যান্ড। ওকে এই ডায়মন্ড এটা এখানে পড়েছো, এখানে যে ডায়মন্ডের ব্যাপারটা, আমার मेरा मेरे क्लबिंग है क्योंकि मेरा पापा को भी है। तो ये जेनेटिक हो सकता है, फैमिलियल हो सकता है, एंड ऑल्सो स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। जो लोग काफी दिन से 5 साल 6 साल 7 साल स्मोकिंग कर रहे हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा क्लबिंग डेवलप होता है। व्हाट इज क्लबिंग? क्लबिंग এর চারখানা গ্রেড আছে, গ্রেড 1 গ্রেড 2 গ্রেড 3 গ্রেড 4, বাট आई थिंक यू डोंट नीड टू स्टडी दैट हियर, इट विल यू विल स्टडी दैट इन फाइनल ईयर, ठीक है। अभी बस जान लो कि क्लबिंग क्या होता है। क्लबिंग इज इधर पे एक डायमंड शेप होता है, ठीक है, जो आप एक और आंगुलটা দেখাও, और आंगुले देखते पाবে। हर लोग अपना उंगली ऐसे करो, ये जो इंडेक्स फिंगर है आपको ऐसे करो, ऐसे ऐसे, हाँ এরকম देखोगे इधर पे एक डायमंड, इधर पे एक गैप होगा, देखो वो जो आपका नेल बेड का जो वो जो शुरू हो रहा है जिधर पे दोनों साइड का, उसके अंदर एक गैप होगा जिसमें से लाइट पास करता है, उसको एक छोटा सा डायमंड टाइप का देखते हैं, देखो हाँ उसको हम एक डायमंड कहते हैं। मैं नाम खुद भूल गया इसलिए मैं नहीं बता रहा अभी इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड डायमंड। ओके वही डायमंड, लॉस ऑफ दैट डायमंड विल कॉज। नाउ क्लबिंग इज व्हेन योर ये जो पल्प्स एंड दीज एरियाज आर गेटिंग थिक, দেখতে পেয়েছো? ওকে তো লাইটটা পাস করবে। সো হোয়াট ইজ ক্লাবিং এই বলো? the loss of this diamond. Why the loss of this diamond? Because the pulps and also the other side of your nails, okay, your nail beds all will get thick like me. একটা ফ্যামিলি আমার বাবারও আছে, তো ওই জন্য আমার আছে, ঠিক আছে। তো আমার ছোট থেকেই ছিল অ্যাকচুয়ালি। তো অনেকের কি হয় পরে ডেভেলপ করে। ওকে সো কি হয় দেখো আমার এখানে দেখো, দিস ইজ এ লিটল বিট থিক, দেখেছো অলরেডি ঠিক আছে, বাট ডায়মন্ডটা এখনো আছে। ডায়মন্ডটা যদি পুরোপুরি চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে ক্লাবিং এর গ্রেড 3 4 হয়ে গেছে। ওকে ইট ইজ লোয়ার গ্রেড অফ ক্লাবিং। তো এটা হচ্ছে আমাদের क्लबिंग। तो ব্যাপারটা হচ্ছে যে क्लबिंग ऐसे कर पढ़ेंगे, क्लबिंग का रीजन वो सब आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखना है व्हाट इज क्लबिंग। क्लबिंग इज दैट, क्लबिंग से काफी रिस्क फैक्टर हो सकता है, वो सब बाद में पढ़ोगे। बस ये देखना कि वो है क्या नहीं, नोट करना, आपको सारा कुछ नोट करना है, ये है वो है ये नहीं है, वो सब हम दिखाएंगे। पहले ये नोट करो, 25 पॉइंट है, खत्म नहीं होगा, ठीक है। सायानोसिस, व्हाट इज सायानोसिस बोलो? सायन मींस ब्लू, cyanosis means any bluish discoloration of your what, of your lips, okay, of your nails, of your lips, nails and also of your fingertips, anything। इसका क्या मेन रीजन है? lack of oxygen, lack of oxygen, it's due to hypoxia। now he is telling anemia, एनीमिया इज ए प्रीकर्सर, बिकॉज एनीमिया अगर होगा उसका मतलब उसका सेल में ऑक्सीजन सही से नहीं जा रहा है, ओके, बिकॉज हिमोग्लोबिन कमे যাচ্ছে। so ultimately it will lead to hypoxia, so anemia can be a precursor, but cyanosis is typically due to loss of oxygen, less oxygen। ओके उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब होगा फॉर्म नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, दैट्स व्हाट प्रेसिपिटेट्स द ब्लू कलर, ठीक है। देखबे ब्लू ब्लू हो जाए, काफी अगर दौड़ोगे, हाँ ओके, किसी का अगर बहुत दिक्कत हो रहा है सांस का तो देखोगे उसका ऐसे लिप्स ब्लू हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। ओके तो उसको साइनोसिस कहेंगे। नाउ इन सम डिजीजेस दिस कम्स इन प्रीरिक्विजिट, स्पेशली इन हार्ट डिजीजेस, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस, जो छोटा छोटा बच्चा है जिसका लाइक हार्ट में कोई छेद है, उदर सेप्टम में कोई छेद है, इंटरएट्रियल इंटरफेट्रियल सेप्टम में कोई छेद है, फैलस टेट्रालजी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब में आपका साइनोसिस इज प्रीटी कॉमन। नाउ इडिमा, इडिमा एंड स्वेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है।
इडिमा यूजुअली हम एब्डोमिनल रीजन में मीन करते हैं, ओके, एंड इडिमा यूजुअली वी मीन व्हेन देयर इज फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड और पस फील्ड, पस মানে আমরা বাংলা যেটাকে পুঁজ বলি, ओके, पस PUS, फ्लूइड और पस फील्ड, उसको हम नॉर्मली इडिमा कहते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन स्वेलिंग? फ्लूइड और पस फील्ड সোয়েলিং ইজ ইডিমা, সোয়েলিং ক্যান বি হার্ড, সোয়েলিং এর মধ্যে তোমার পাস বা ফ্লুইড থাকতেই হবে ऐसा कोई बात है नहीं, ओके। तो সোয়েলিং कैन बी इंजरी, ओके। ওই যে কাল खेलने गए थे हम, हमारा पैर में सूज गया, तो दैट इज सोइलिंग बट दैट इज नॉट इडिमा। इडिमा विल बी ओके व्हेन माय belly is engorged, when there is fluid inside my belly, then हम कह सकते कि एब्डोमिनल इडिमा हुआ है, ओके। বুঝতে পারলে তো ইডিমা আর সোয়েলিং এর ডিফারেন্স হচ্ছে এটা। ইডিমা ইজ আইদার পাস অর ফ্লুইড। না পাস और फ्लूइड यू डोंट नो, वी विल डू द अदर इन्वेस्टिगेशंस एंड नोटिस। पास अगर होगा तो आपका न्यूट्रोफिल वो सब काउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से ही हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, तो वो सब आपको रिलेट करना है सारा कुछ, ओके। एनीवे, तो इडिमा आपका ये हो गया, स्वेलिंग उसका ये हो गया। इसको हम बस देखना पड़ेगा पेशेंट को, कैसा पहले कैसे पूछोगे, ओके, कि सुनिए आपका किसी जगह पर शरीर के लगता है कि ये आपका कुछ बड़ा हुआ है, नॉर्मल जगह से बेसी ज्यादा सूजा हुआ है, सबको लगता है। नाउ अगर पेशेंट कॉम्प्लेन्स की यहाँ सर ऐसा कुछ है, देन यू गो एंड सी इफ इट्स अ स्वेलिंग और इट्स इडिमा और इट्स जस्ट एनगॉर्ज्ड लिम्फ नोड्स, ओके। स्वेलिंग आ गया, इडिमा आ गया, तो लिम्फ नोड भी बता देते हैं। नाउ स्वेलिंग्स आपको पता है कहीं भी हो सकता है, पर लिम्फ नोड्स देयर आर ओनली पार्टिकुलर प्लेसेस। आपका टीबिया के आगे कभी स्वेलिंग हो सकता है, टीबिया के आगे कभी लिम्फ नोड नहीं आएंगे। लिम्फ नोड का अलग अलग प्लेस होते हैं, योर फेशियल एंड প্যারাফেশিয়াল লিম্ফ নোডস, মুখের আশেপাশে যেগুলো আছে, সার্ভাইকালের এখানে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস, সব লিম্ফ নোডের গ্রুপগুলো আছে তোমরা যেগুলো পড়েছো। তারপরে অ্যাক্সিয়াল লিম্ফ নোডস, প্যারাভার্টিব্রাল লিম্ফ নোডস, অল দোজ ইউ হ্যাভ স্টাডিড। সো সেই লিম্ফ নোডগুলো যখন বেড়ে যায়, ইট ইজ সাজেস্টিভ অফ ইনফেকশন। লিম্ফ নোড ইজ এ ভেরি গুড মার্কার অফ ইনফেকশনস, ओके। लिम्फ नोड इज ऑफन इंक्रीज्ड इन अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, तो आपको चेक करना है कि लिम्फ नोड एंगेज हुआ है क्या नहीं। एंड अनदर थिंग, स्वेलिंग, ओके। So in case of hernia, you have seen about hernia. Hernia, what is hernia? Okay, good. Abdominal content বাইরে বেরিয়ে যাবে, okay. So that হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, you know, but you know well, but the hernia is can also cause swellings, ঠিক আছে। So it is a hernial swelling or previous injury swelling or any what kind of swelling we have to then understand, or it is just lymph node। हार्निया में तो लिम्फ नोड नहीं होगा, हार्निया इज एन ऑर्गन प्रोट्रूडिंग थ्रू एनी बैरियर, एब्डोमिन से बाहर आ गया है, ठीक है, बट पेरिटोनियम उसको छेद करके, ठीक है। सो वो स्वेलिंग आपका ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो सकता है कि लिम्फ नोड बढ़ गया है, टीबी में लिम्फ नोड बढ़ सकता है, ठीक है। एनीवे, स्वेलिंग आ गया आपका। स्कार्स एंड स्किन, स्किन में काफी समय पेशेंट कॉम्प्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आपका अगर आपका हाथ में इधर उधर देखोगे तो आप कुछ देख सकते हो कि कोई स्कार मार्क्स है क्या नहीं, आपको नजर में आ गया कि अच्छा ठीक আছে দেখতে পেয়ে গেছি, ওকে। on often patient misses some history, okay, but if you notice the scar you can ask him about it। আচ্ছা এখানে একটা দাগ আছে, কি হয়েছিল, ও কোনো অপারেশন হয়েছিল না লেগেছিল, you understand, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। any kind of scars, वो स्किन में आ गया तो स्कार्स अगर आएगा तो इधर पे इनगॉर्ज वेन भी आएगा। कभी कभी आप देख सकते हो किसी किसी जगह के आपको एब्नॉर्मल पल्सेशन आ रहा है, ओके, कहाँ पे आ सकता है, इधर पे आ सकता है वे, तो वो एब्नॉर्मल पल्सेशन आ सकता है। पल्सेशन मतलब एब्नॉर्मल पल्स तो नॉर्मली बीट नहीं करते, ऐसे आप देख नहीं सकते हो, और कभी कभी आप देख सकते हो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है उसका, उसको रेज जीवीपी कहते हैं, रेज जेवीपी, ओके, जुगुलर वेनस प्रेशर, वो सब में आपको उधर मिल सकता है, वो सब बाद में पढ़ोगे। बस अभी देखो कि इनगॉर्ज नेक वेन्स नेक वेन्स हो सकता है, और भी कई जगह वेन वो सब बढ़ सकता है, ओके। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, सडनली कैसे हो गया। स्किन, एनी काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शंस इफ यू कैन नोटिस, आपको देखना पड़ेगा, ओके ठीक है, हाथ दिखाओ, इटा दिखाओ ऐसे करके। अगर आप कोई फंगल इन्फेक्शन कुछ भी स्केबीज वगैरह कुछ भी आपको नजर में आए, ओके, या पॉक्स का पैस्ट्यूल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको नजर में आए तो दैट कम्स अंडर योर स्किन, आपको वो सब भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है आपका जनरल ऑब्जर्वेशन बाय और विथ और विदाउट टचिंग द पेशेंट। कुछ चीज आपको टच करके देखना है, जैसे करके वो जब पैलर इक्टेरस,
इक्टेरस टच करने का उतना जरूरत नहीं है, क्लबिंग भी ओके थोड़ा सा टच कर सकते हो, साइनोसिस भी आप बाहर से देखोगे, लेकिन इडिमा, स्वेलिंग, ओके, लिम्फ नोड्स ये सब आपको टच करके देखना है, ये आपको ऑब्जर्वेशन में हो जाएगा, लेकिन दिस टू डेफिनेटली नीड्स टचिंग। सो ये मिक्स्ड है, विथ और विदाउट टचिंग आपको ये सब देखना है। सारा पॉइंट लिख लिए हो? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट देन। ओके এবার চলে যাও, এবারে আর টেস্ট কিছু নেই, ঠিক আছে? सो वाइटल्स हो गया, with or without touching we will see some important things, वो हो गया। now I'll come to observation। now you are observing the patient, okay, ये पहले होना चाहिए था, but you know since the level of importance is given to vitals and these things, इसलिए मैं ये पहले बताया। इसके बाद में आपको ऑब्जर्व भी करना है, क्या क्या ऑब्जर्व करना है वो हम आएंगे अभी। नाउ ऑब्जर्वेशन में वही जो स्किन के अंदर थोड़ा डिटेलिंग में हम आते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? लीशंस, जैसे एनी काइंड ऑफ लीशंस ओवर द स्किन, ओके, किसी के पॉक्स हो सकता है, ओके, किसी को एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी का पुराना इंजुरी है, किसी का मैगोट्स भर गया है, किसी का वो फिजियोथेरेपी में उसका ट्रीटमेंट चलता था तो उसका स्किन उधर पे बिखरा गया हुआ है, काफी कुछ हो सकता है। तो लीशंस, एनी काइंड ऑफ लीशंस ओवर द स्किन, ओके, एनी काइंड ऑफ लीशंस ओवर द स्किन आपको देखना है। और मार्किंग्स, कई लोगों का टैटू मार्क्स है, ओके, कई लोगों का टैटू मार्क्स है, वो टैटू उसका फ्रीक्वेंसी कितना, अगर उसका टैटू मार्क्स है तो उसका हेपेटाइटिस का चांस थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, बिकॉज ही यूजेस अ लॉट ऑफ नीडल्स, राइट, ओके, फ्रॉम आउटसाइड। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है। मार्किंग्स, नाउ इफ द मार्किंग्स कैन बी यू नो ओनली बाय टैटूज, नो, देयर इज आल्सो, देयर कैन बी अदर मार्क्स। व्हाट मार्क्स? सर्जिकल मार्क्स, पहले कोई सर्जरी हुआ था उसका निशान रह गया, तो एनी काइंड ऑफ लीशंस, टैटू, surgery, previous surgical marks, okay, and also what marking? Needle prick mark, important in IV drug abusers, the नीडल प्रिक में इन केस ऑफ आईवी ड्रग एब्यूजर्स आपको देखना है कि कई कई जगह नीडल का प्रिक है क्या नहीं। हम इन्फेक्शस डिजीज डिपार्टमेंट में थे, काफी देख चुके हैं। वो बोल रहा है मैं तो कुछ नहीं करता था, तो मैं बोला फिर ये प्रिक क्या है, सही से बताओ, नहीं तो हम ट्रीटमेंट कैसे शुरू करेंगे। तो ऐसा होता है। नीडल, only one voice is audible. Which voice is that? It should have been mine, but for the last 2 minutes that voice is also talking. No problem, you can teach, but please stop when I am asking. नीडल प्रिक का मार्क्स हो सकता है, एंड ऑल्सो वेन्स। अगर आईवी ड्रग जो लेते हैं वो जिस नस से वो लेते हैं वो सब नस अगर नहीं देखे हो, वो पूरा एकदम वो हो जाता है, मतलब क्या क्या है उसको, सूज जाता है, फूल जाता है, ओके। नॉर्मल वेन्स आर लाइक दिस, इफ दे आर फ्रॉम द सरफेस, इफ दे आर this kind of thick, the IV drug abusers, their veins becomes this kind of thick, okay, इतना thick हो जाता है, but it is not felt as good and light as this। वो थोड़ा सख्त भी हो जाएगा, काफी हार्ड हो जाएगा, वो जो आप कॉर्ड लाइक अपीयरेंस हो जाएगा, तो वो भी आपको मार्किंग में आपको देख के पता चल जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग दे बिकम ब्लैक, क्योंकि उसके अंदर से काफी ड्रग पास किया हुआ है, पूरा ब्लैक हो जाता है, ओके। लाइक मेरा वेन इधर पे, दिस इज नॉट ब्लैक, राइट, ओवरऑल स्किन इज ब्लैक, बट देखो इधर पे वेन पे देखो, इट्स ओके नॉर्मल विद द स्किन कलर, बट इवन इफ स्किन इज लाइक दिस, उसका वो पूरा ऐसे करके इतना डीप हो सकता है, इतना डीप हो सकता है, ओके। सो ये सब आपको देखना पड़ेगा, वो भी एक मार्किंग है। सो ड्रग अब्यूज मार्क्स, ओके। सो ऐसे करके कोई लीशंस, और लीशंस के मतलब वो स्किन इन्फेक्शन में आता है, ठीक है। किसी का वो पैसे नहीं बताया, लेकिन आपने जाके देखे कि इधर पे कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सीडेंटल फाइंडिंग हो ही सकता है। सब जब देखे हो, मोस्ट प्रोबब्ली बिकॉज ऑफ स्किन इन्फेक्शंस, those lesions are due to। so okay, lesions and markings। then आपका रेडनेस, र्यूबर, किसी जगह पे आपका रेडनेस है क्या नहीं, ठीक है, वो पैलर था, लैक ऑफ रेडनेस, दिस इज र्यूबर।
नाउ द ड्यूबर इज ड्यू टू एनी काइंड ऑफ लोकल इन्फेक्शन, लोकल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। थोड़ी देर पहले किसी जगह लग गया था, उधर भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, वो जगह सूजा हुआ है, ऐसा हो सकता है। एनीथिंग कि कोई जगह घिस गया था, उधर पे आपका रेडनेस अभी तक है, वो सब जो नॉर्मल इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन। ड्यूबर के बाद क्या होगा? पेन। आस्क द पेशेंट अबाउट पेन, कहीं पे पेन होता है क्या नहीं। पेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके। पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लेन, मतलब pain is a symptom, pain cannot be a sign. Why? Because pain is always complained. You cannot perceive pain by seeing someone, okay, unless it's very obvious. लेकिन वो तो गेट और पोस्चर में आ जाएगा, समझ रहे हो ना? गेट, पोस्चर एंड बिहेवियर में आ जाएगा, वो ऐसे ही घुस रहा है, मतलब उसका कुछ है इधर, दर्द तो है, ओके। So yeah, so that's when it becomes your sign, but the patient complains, it's symptom. বুঝতে পারলে? So pain, ask about pain, any lesion marking over skin हो गया। So what did I just now talk about? Gait. Gait मतलब posture while walking, and posture means generalized posture। जैसे मैं ऐसे चल के आ रहा हूँ, तो that is my gait, but मैं जब ऐसे खड़ा हूँ, that is my posture। तो gait and posture are important। Why? Because वो चल के आ रहा है, सही से सीधा रास्ते पे चल के आ सकता है क्या नहीं, हिल रहा है क्या नहीं, पेशेंट इधर उधर, उसका पैर जो पड़ रहा है। हाँ, অনেকে দেখবে थोड़ा उम्र वाले लोग बोलते हैं मेरा पैर फॉल्स हो रहा है, इट्स नथिंग, इट्स बिकॉज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब वो फेंक रहा है एक जगह, पैर ऐसे हट रहा है, तो ये भी उसका गेट में इंपॉर्टेंट है। और कोई लोग कैसे चलते हैं, वो 5-6 है, बबलिंग गेट, वाडलिंग गेट, वो सब आप बाद में पढ़ेंगे। हाँ, कैसे कैसे चलते हैं। ऑन पोस्चर, किसी का स्कोलियोसिस है, स्काइफोसिस है, दैट मींस स्पाइन का प्रॉब्लम, तो बाद में पढ़ोगे, तो उसका ऐसे हंचबैक पोस्चर, ओके, स्ट्रेट पोस्चर, ओके। स्पॉट मतलब ऐसे एक इंसान हमेशा ऐसे नहीं रह सकता, और ऐसे है तो उसका कुछ दिक्कत इधर पे है, दैट्स व्हाई ही इज कॉम्पेंसेटिंग लाइक दैट। तो ऐसे करके काफी चीज हो सकता है, तो गेट एंड पोस्चर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो नाउ those thing you are actively asking and actively seeing, these thing you will only notice by yourself. These things most probably patient won't complain because they are accustomed with it. These things patient can complain कि सर देखिए ना, इस जगह पे थोड़ा सूज गया है, देखिए तो कैसा सूजन है, but this thing patient will not complain. Gait patient will not complain, patient thinks it's my normal posture, but when you are seeing, you are as a clinician you divulge into this, अच्छा ऐसे किया है, ये तो नॉर्मल पोस्चर नहीं है, क्या हुआ था, ओके। so that's your job actually, so for your job you need to do these kind of things. now posture हो गया, और क्या किया? कोहेरेंस ऑफ द पेशेंट। कोहेरेंस मतलब वो जो बोल रहा है, ओके, वो सही है क्या नहीं, मतलब कितने समझ पा रहे हो। तुम बोल रहे हो कि एसो बाबा बसो, ही इज आस्किंग यू कि बाजारे गेছিলাম, you know, it doesn't mean, you know, doesn't have any sense. So that means most probably he is mentally not fully sound. So that's your what? Coherence. Coherence of words, coherence of actions, not only words, actions। তুই বললে বাবা বসো, he is standing and he just walked around the room and came back। so yeah, ऐसा भी हो सकता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके। सो कोहेरेंस अगर आपको समझ में नहीं, मतलब पॉइंट आ गया, तो इसके बाद अवेयरनेस भी आ जाएगा। पेशेंट आया, आप आपको पूछे, आप उसको पूछे कि बोलो माँ এখন কটা বাজে, এখন बाहर पे इतना धूप है, वो कह रही है 5 बज गया है, इज दैट नॉर्मल? नो, बट काफी होता है। सो दैट्स योर अवेयरनेस। अवेयरनेस उसको है नहीं कि बार आज के, आप सभी लोग कह सकते हो आज यू नो गुरुवार है, राइट, थर्सडे या फ्राइडे, सॉरी, एनीवे, और मेरा अवेयरनेस इज नॉट ऑलवेज राइट। सो एनीवे, डजंट मैटर, आई डोंट नीड ट्रीटमेंट, বাট সাম পিপল ডু। অ্যাওয়ারনেস হয়ে গেল। আর তাছাড়া শুধু তাই নয়, ইজি অ্যাওয়ার অ্যাবাউট ইউর সারাউন্ডিংস, বাবা তুমি কোথায় আছো, বলো তো এটা কি হাসপাতাল, you will not say anything, okay। so ऐसे करके अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एसेस कर सकते हो इज इज मेंटली साउंड और नॉट, एंड व्हाई इज इट हैपनिंग, इज इट बिकॉज ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, करेंट प्रॉब्लम, और इज इट एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी होगा तो आपको उधर भेजना पड़ेगा, ट्रीटमेंट वैसे शुरू करना पड़ेगा। न्यूरोलॉजिकल होगा तो यू हैव टू डू अ सीटी स्कैन और एमआरआई एंड यू नो ट्रीट अकॉर्डिंगली। पार्किंसन, एल्जाइमर्स, एज रिलेटेड डिमेंशिया, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो अवेयरनेस हो गया, उसके बाद क्या हुआ? अवेयरनेस के बाद अंडरस्टैंडिंग। कोहेरेंस मतलब उसका काम में, उसका बात में क्या, यू नो,
सिम्फनी था या नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में वो आपकी बात कितना समझ रहा है। ओके वो कई लोग होता है कि वो समझ रहा है बात को, आंसर करने का कोशिश कर रहा है, बट दैट इज नॉट कोहेरेंट। ओके मतलब हिज अंडरस्टैंडिंग इज राइट, इनपुट इज राइट, बट द आउटपुट इज हैम्पर्ड, आउटपुट नहीं ठीक हो रहा है। ये भी वो जो एक मोटर पाथवे एक सेंसरी पाथवे का प्रॉब्लम है, तो मोस्ट प्रोबेबली हिज प्रॉब्लम हुज प्रॉब्लम इज कोहेरेंस, most probably it indicates problem in motor pathway, the advisory pathway कि ये करो उसमें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो मोस्ट प्रोबेबली द प्रॉब्लम इज इन सेंसरी पाथवे। अंडरस्टैंडिंग माने যাচ্ছে ही ना जिनिसটা ওর माथाয়, आप उसको बोल रहे हो लेकिन ही can't अंडरस्टैंड। ओके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होगा तो दैट इज योर कोहेरेंस में प्रॉब्लम है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा मतलब इनपुट ही सही नहीं हो रहा। आपका गलती नहीं है, आप तो सही पूछ रहे हो, उसका गलती है, गलती नहीं उसका डिजीज है, ये दिस इज हिज और हर सिकनेस। तो अंडरस्टैंडिंग कैसा है उनका आपकी बातों का, आप बोल रहे हो कि मैं हाथा दाओ एंड ही शी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंटायरली ना, मतलब ऐसा काफी होता है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसा है ये सब आपको एसेस करना है। एंड आईक्यू, बेसिक आईक्यू, बेसिक आईक्यू मतलब पढ़ाई लिखे में वो सब नहीं, बाबा তুমি কোথায় আছো, তোমার বাড়ি কোথায়, ওকে দুই আর দুই কত হয়। A person how much illiterate he is, he will ask 2 plus 2 is equal to 4, he can say, okay, but some people might not, কেন কি প্রবলেম হচ্ছে। and also I have missed some things here, বলতে বলতে মনে পড়লো ট্রেমার। ओके तो मतलब फर्स्ट ईयर এত কিছু হয়তো নেই, আমি कुछ पॉइंट्स हम फाइनल ईयर से भी ऐड कर रहे हैं ताकि मिस ना हो जाए, कुछ भी ना छोड़े, लेकिन ये सब 6-7 पॉइंट ही फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट था। ट्रेमर, ट्रेमर मींस एबनॉर्मल हैंड एंड फीट जो जर्क हो रहा है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ ट्रेमर एंड आल्सो एनी काइंड ऑफ ओके उसको क्या कहते हैं सीजर। सीजर मतलब सीजर और ये मतलब उसका जर्की मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स और फीट। ट्रेमर मतलब नॉट जर्की, इट इज कंटिन्यूअस ऐसे करके मूवमेंट होता है। पार्किंसम में आपको दिखने को मिलेगा, ट्रेमर्स काफी देखने को मिलता है, ओल्ड एज में देखने को मिलता है नर्व प्रॉब्लम के लिए। सीजर, एनी काइंड ऑफ सीजर एपिसोड्स। सीजर एपिसोड मतलब स्पेसिफिक सीजर एपिसोड, सीजर आपको पढ़ाया गया है पढ़ लेना। सीजर एपिसोड मतलब उसको मतलब दौरे पड़ता है जो हिंदी में कहते हैं उसको सीजर एपिसोड कहते हैं, ठीक है। बांग्लाয় बोले मृगी और इंग्रजीते बोले सीजर और हिंदी बोले दौरे पड़ना। उसको उसका जो दांत है वो लॉक हो जा सकता है, उसके साथ वो हाथ और पैर वो सख्त हो सकता है, ऐसे करके रुक गया, ठीक है। या जनरलाइज्ड कॉन्वल्सन्स, या दिस इज द मेन थिंग आई वाज गोइंग टू से। सीजर, दौरे पड़ना, वो सब आपका सिम्टम्स हो गया क्योंकि पेशेंट कह रहा है मेरे को हो रहा है, बट द साइन इज कॉन्वल्सन। उसको कॉन्वल्सन कहते हैं, ठीक है। कॉन्वल्सन, कॉन्वल्सन एपिसोड है क्या नहीं, ये सब है क्या नहीं, ट्रेमर है क्या नहीं, कॉन्वल्सन है क्या नहीं, उसके साथ उसका रीडिंग राइटिंग कैपेबिलिटी कैसा है, वो सब आपका आईक्यू में आएगा। मतलब रीडिंग राइटिंग मतलब ऐसा नहीं कि बाबा लिखे दिखाओ, ऐसा नहीं। आप कुछ कह रहे हो, मे बी ही इज एकेडमिकली इलिटरेट, बट if he doesn't understand anything, any normal thing, then his real normal life is hampered. No, that means he is suffering from any problem, either mental developmental problem or any kind of psychological problem. We have to assess that. तो generalized IQ, okay, ये घर कहाँ है, ये जो तुम SSK में देखाते हैं, SSK में कॉलेजটা কোথায়, okay, वो जस्ट आ गया है किसी के साथ, उसको पता नहीं, उसको तो हम रियल लाइफ में मतलब स्वास्थ्य नहीं कर सकते ना, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। एंड ओवरऑल अपीयरेंस, अपीयरेंस आपको लिखना पड़ेगा, इफ इज डिसेबल्ड अपीयरेंस और नॉट। बेसिक अपीयरेंस सबका होता है, जितना भी पुअर हो, जितना भी दूर से आए हो, जितने भी थका हुआ हो, बेसिक अपीयरेंस। कई लोगों को सेंस नहीं है किधर क्या पहनना है, ऐसा भी नहीं है, हाँ उन लोगों को सेंस है। कई लोगों को सेंस नहीं, मतलब वो लोग वायरल्स रील्स वगैरह टिकटॉक के लिए कुछ भी कर लेते हैं। Okay, they are also psychotic patients, but they are another kind of psychotic patients. They are selectively psychotic. When they are eating food, they are eating proper food, but when they are doing reels, they are doing improper things. So that's different. That's selectively psychotic. These are different people. We are asking about medically psychotic people. So medically psychotic people কি হবে, overall appearance disable থাকবে, ঠিক আছে। যারা ওই ভুলভাল তুমি দেখো রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করছে, নাচানাচি করছে রিলসের জন্য, ওদের পোশাক কিন্তু ঠিক আছে, they are aware about everything except their consequences, but these patients they are not aware about anything at all, right? ওরা জানেই না ওরা কি করছে,
হয়তো মানে এখানে হয়তো চলে এসছে, জামা প্যান্ট ঠিক করে পরতে ভুলে গেছে, জামাটা উল্টো পরে ফেলছে, ওকে, বুঝতে পারছে না। হ্যাঁ, প্যান্ট তুমি তুমি বলছো প্যান্ট পরো, সে হয়তো হাফ প্যান্ট পরে সে অনেক দূরে চলে গেছে। অনেকে হাফ প্যান্ট পরে যায়, সেটা তার ক্ষেত্রে নর্মাল, বাট ইজ ইট নর্মাল ফর দ্যাট পারসন? He doesn't go outside his house wearing his half pants, but now he is forgetting his clothes. Most probable causes of Parkinsonism, Alzheimer, dementia, उसको याद नहीं रहता है। जब याद रहा है, he has already gone outside, তখন আবার ফিরে আসছে। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में काफी होता है ऐसा, बहुत उम्र में, बड़ी उम्र में काफी आपको देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग गायकू एंड अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस, और उसका अपीयरेंस भी कैसा है, मतलब इज ही यू नो उसका अपीयरेंस एंड जनरल हाइजीन, उसका नाखून बकुल वगैरह, बहुत रास्ते में काफी पागल लोग पड़े रहते हैं, उनका जो मेंटली डिस्टर्ब लोग पड़े रहते हैं, उनका हालत देखोगे, दे आर नॉट कॉन्सर्न अबाउट देयर हाइजीन एंड अपीयरेंस आल्सो। सम पीपल नो देयर अपीयरेंस इज बैड, but they're trying to correct it, rectify it, but some people have no awareness about it। ओके, अब देखे हो ऐसे करके जनरलाइज्ड हाइजीन, कई लोग अच्छे होते हैं, उनका दिमागी संतुलन पूरा ठीक है, but they are not hygienic, not because only they like to stay dirty, it might be because of some psychological problems, might be because of depression, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, he just stays like that। आपको ट्रीट करना पड़ेगा ना उससे बात करके कि क्यों कर रहे हो ऐसे, what is your need, কেন এরকম করছো, okay, everything should be talked down। তো appearance, if the change in appearance is intentional, unintentional and completely illogical, okay, intentional কি হবে appearance, অনেক সময় কোর্ট কেস में देखोगे कई लोग पागल बनने का कोशिश करते हैं, but they are not mad, to avoid any inquiries and all। So in case of this you will notice the difference, okay, their appearance will be okay but their behavior will be abnormal। but in which patients I am talking about, जिनका ऐसे करके ये सब नाखून बकुल वगैरह वो सब रहता है, जिनका जनरल हाइजीन खराब रहता है, हाँ, their behavior and appearance both are abnormal। but जो लोग साजिश करते हैं, नाटक करते हैं, उनका appearance appearance and hygiene, these are actually not that much, because they are just showing you that I am mentally incapable, they are acting, but उसके मतलब ये नहीं कि वो generally unhygienic रहेगा, वो hygienic ही रहेगा। so ऐसे करके आप थोड़ा समझ सकते हो, पुलिस लोग ऐसे करके थोड़ा मेंटल प्रोफाइलिंग करते कि जिसका किसी चीज में फर्क नहीं पड़ता वो नाखून क्यों काटेगा 2 दिन बाद, ओके, तो मोस्ट प्रोबब्ली ही इज एक्टिंग, इसको थोड़ा अच्छे से देखो, ओके, तो दिस थिंग्स ऑब्जर्व में लिखो। And now you have to ask some questions to the patient, okay, and एक चीज इधर पे ऐड कर सकते हो कॉन्फाल्फाइम के साथ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, पिंच टेस्ट, ओके, आपको आप पढ़े होंगे या बाद में पढ़ोगे, वो जो हम ऐसे करके स्किन को ऐसे पिंच करके बता सकते हैं, जैसे इफ आई एम पिंचिंग माय स्किन इट इज कमिंग बैक वेरी वेल, देखो कोई उंगली का निशान नहीं छोड़ रहा है, कुछ नहीं छोड़ रहा है, ओके, बट व्हेन पीपल आर डिहाइड्रेटेड इफ यू विल पिंच द स्किन, जैसे करके कॉलेरा पेशेंट में, ओके, जिसका काफी फ्लूइड लॉस हो गया है, उनका ऐसे पिंच करोगे, देखोगे वो कम बैक होने में वक्त लगता है, वो हम पैर के वो एंकल के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर पे भी करते हैं ऐसे करके, उसको पिंच टेस्ट कहते हैं, आप बाद में पढ़ोगे, तो या इधर पे डिहाइड्रेशन भी ऐड करो। अब हाँ, when I am seeing the patient are doing all these things it comes naturally, but when you are studying, okay, it's all in your head, but you will miss, just like I missed, but just when I was talking about appearance and all, okay, and medical and surgical history, suddenly I remembered अरे डिहाइड्रेशन टा बाकी আছে, तो ऐसे करके आपको याद आ जाएगा, but you have to know that it's there, है ना। डिहाइड्रेशन ये ऐड करो, कैसे कैसे डिहाइड्रेटेड स्टेट कैसे फॉलो करोगे, ओके। ডিহাইড্রেশন क्यों हो सकता है, পুরোটাই চলছে সবই, এবার আমি ভাগ ভাগ করে বলছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। জেনারেল এক্সামিনেশন তোমাকে এগুলো এক্সামিন করতে হবে না, পুরোটাই আমি ভাগ ভাগ করে বলছি, কিছু জিনিস ইউ শুড অনলি অবজার্ভ, হ্যাঁ, সাম থিংস ইউ শুড টিচ বাই ইউর হ্যান্ডস, সাম থিংস ইউ অবজার্ভ বাই জাস্ট বাই ইউর সেলফ, পেশেন্ট ডাজন্ট সে এনিথিং, দিস থিংস ইউ অবজার্ভ বাই ইউর সেলফ, ওকে। পেশেন্টকে খুঁজে খুঁজে জিজ্ঞেস করবে কোথায় ব্যথা হচ্ছে, পেশেন্ট নাই বলতে পারে, ওকে, হি ইজ নট ফিলিং কমফোর্টেবল, আর হয়তো মেন্টাল কন্ডিশনই নেই বলার মতো, ওকে। and anyway and
ये सब हो गया ना, कुछ चीज बाकी है লিখে নিয়েছো সব? আচ্ছা ওই দিকটা মুছি। These things, specifically these things need your hand to inspect. দেখো এগুলো হাত ছাড়া তো করতে পারবে না, বাট এই জিনিসগুলো এই দিকের গুলো দেখো উপরে শুধু অবজার্ভ লেখা আছে, ওটা আমরা বলেছিলাম যে ইন্সপেকশন উইথ অর উইদাউট টাচিং, এটা হচ্ছে জাস্ট অবজারভেশন, এগুলোর জন্য তোমার পেশেন্টকে টাচ করে দেখতে হবে না, এগুলো তুমি দেখে নিলে, চোখে দেখে নিলে আচ্ছা আমার দেখে এরকম মনে হচ্ছে, দেন ইউ আস্ক ইউর কোশ্চেন্স কোঅরবোরেট উইথ ইউর ফাইন্ডিংস। তোমার মাথায় এতগুলো দেখার পর, এতগুলো নিজের চোখে দেখার পর, এগুলো ফিল করার পর তোমার নিশ্চয়ই সামথিংস নাও ইন ইউর মাইন্ড গোয়িং অন অ্যাবাউট দ্যাট পেশেন্ট, নাও ইউ আস্ক কোশ্চেন্স অ্যাবাউট ইট, ওকে, অ্যান্ড কোঅরবোরেট অল দ্যাট। কি কি কোশ্চেন আস্ক করবে, ফার্স্ট দুটো জিনিস আমি তখন বলিনি, বাট অলওয়েজ ইউ শুড রাইট দ্য নেম, এজ অ্যান্ড সেক্স ইন মাইন্ড। সবচেয়ে প্রথমে পেশেন্ট আসলে এগুলো জিজ্ঞেস করবে, তাই তো? Why is name, age and sex important? Because that's his identity or her identity. Identity swap হয়ে গেলে patient swap হয়ে যাবে। তাহলে এবার now these are all your investigation, তুমি কি দেখবে, তুমি কি করবে। Now some things you need to fill in your history sheet. So examination part is done, now history taking. So general examination and history taking comes hand in hand. You cannot do one without the other. Okay, history taking কি কি পয়েন্ট আছে, name, history taking, ideally history taking would be done, should have been done first, then after that this general examination and उसके बाद systemic examination, ऐसे करके होता है। फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, हम पूरा हिस्ट्री लिख लेते हैं, then you know we do the general investigation so that we can corroborate the history with the general investigation, after that we go to systemic examination। okay, so first ये आता है हिस्ट्री टेकिंग, नेम की देखबे, एज আর কি দেখবে, সেক্স, নেম এজ সেক্স, এগুলো ইম্পর্টেন্ট, এই তিনটে সবচেয়ে আগে দেখবে। তারপরে তুমি কি করবে, চিফ কমপ্লেন্ট। তুমি ডাক্তারখানায় বসে আছো, তুমি তো এমনি মুদির দোকানে বসে নাই, তুমি ডাক্তারখানায় বসে আছো, তো তোমার কাছে কি এমনি এমনি আসবে না, কিছু একটা কমপ্লেন নিয়েই আসবে। সো অলওয়েজ আস্ক ফর ইওর চিফ কমপ্লেন্ট, কেন এসছো বাবা, বা কি প্রবলেম বলো, চিফ কমপ্লেন্ট। চিফ কমপ্লেনের বাদ হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস, না এই যে কমপ্লেনটা করলো, বললো যে বাবা খুব ব্যথা হয়, নাও वो आपको क्या है कि बेटा बहुत दर्द होता है, तो आप कहाँ, आप पूछोगे कि कहाँ दर्द होता है अंकल, क्या दिक्कत है, कब, कितना दिन से हो रहा है, ओके, इज इट गुड और बैड, इज द पेन पीरियोडिक और कंटिन्यूअस, दिन में कितना बार होता है, कोई स्पेसिफिक वक्त है या कंटिन्यूअस पेन होता है, दिन में कितना कितना बार आपको होता है, फ्रीक्वेंसी कैसा है उसका, फ्रीक्वेंसी के साथ उसका वो कैसा है, शार्प पेन है या डल पेन है, ठीक है, जब आप किसी आफ्टर फूड इंटेक और बिफोर फूड इंटेक को पेन इंक्रीज हो रहा है क्या नहीं, ये सब सारा कुछ रिलीवेंट। अगर स्टोमक का पेन है तो आपको फूड हैबिट के बारे में पूछना पड़ेगा। तो एज नेम, एज, सेक्स, चीफ कॉम्प्लेंट, चीफ कॉम्प्लेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, this is focused on only this complaint, that's why I am talking about history of present illness। okay, so chief complaint, इसके ऊपर ये complaint है। now history of past illness, past means अच्छा बाबा आप तो ये सब कह दिए हो, आप बताओ कि आपको दूसरा कुछ दिक्कत है, ऐसा पहले भी हुआ था क्या, और कुछ पहले ऐसा कुछ था उसके साथ ऐसा हो रहा है, या सिर्फ यही आपका दिक्कत है। ओके, वो बोल रहा है कि मेरे को बुखार आता है कंटिन्यूअसली, किसी तरह से घटता नहीं है, तो प्रेजेंट ले लिए, कैसे पीरियोडिक बुखार है या कंटिन्यूअस बुखार आता है, बुखार का लेवल क्या होता है, 99-100 टेम्परेचर रहता है या 100-103 हाई टेम्परेचर रहता है, इंटरमीडिएट बुखार या कंटिन्यूअस बुखार, एंड ऑल्सो इफ इट्स एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ यू नो ट्रेमर एंड ऑल, आपका हाथ पैर कांप रहा है क्या नहीं बुखार के बाद, बुखार के बाद हाथ पैर क्यों कांप सकते हैं, 2-3 डिजीज बताओ। मलेरिया में होता है, जब बुखार आता है मलेरिया में पीपल शेक, मलेरिया एनी काइंड ऑफ पास इन्फेक्शन, पास जिधर पे पास जम गया है, ओके, उनको ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन डेंगू में बुखार के साथ वो कंपन नहीं होता है, तो ये सब आपका डिफरेंशियल है। कुछ ऐसा हो रहा है मतलब इधर उसको पास जम गया है, ये मलेरिया है,
ये दो कॉम्बिनेशन और जगह डेंगू में नहीं मिलेगा। टीबी में बुखार आता है लेकिन टीबी में ये पेशेंट का वो सब नहीं होगा, ठीक है। ये सब बहुत चीज है, तो आपको पूछना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, अच्छे से पूछना पड़ेगा। देन हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस। पास्ट इलनेस मतलब दिस प्रेजेंट इलनेस, दिस चीफ कॉम्प्लेन, सोचो मैं बोल रहा हूँ उसका 2 महीने से मेरा पेन होता है, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन दिस 2 months, दिस कम्स अंडर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, राइट। एवरीथिंग हैपनिंग बिफोर द 2 months, उसके पहले आया था, उसके पहले कुछ दिक्कत हुआ था, एवरीथिंग कम्स अंडर हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस। आगे कखनो এরকম হয়েছিল, ओके, पहले ऐसा कुछ हुआ था, तब क्या डॉक्टर दिखाए थे, तब ठीक हो गया था, पूरा आपको पूछना है, ठीक है। এনি কাইন্ড অফ পাস্ট ইলনেস, নট অনলি রিলেটেড টু দিস ইজ রিলেটেড টু, আচ্ছা আর কোন ধরনের অসুখ হয়েছিল, এই ধরনের কোনো অসুখ হয়নি, বাট আর ইউ সাফারিং ফ্রম এনি কাইন্ড অফ থিংস, ওকে। নাও हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इन द पास्ट, नाउ व्हेन आई हैव टोल्ड यू एट सोइलिंग एंड ऑल, वन पॉइंट मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था, वो क्या था, आपको जो देखना है सोइलिंग का नेचर क्या है, ओके। उसमें कुछ इम्प्लांट्स भी हो सकता है उसका, कई लोगों का पेसमेकर जब इधर होता है चेस्ट में, इधर पे थोड़ा बहुत वो थोड़ा ऊंचा रहता है, पेसमेकर देखो क्या नहीं पता नहीं, तो वो भी एक सोइलिंग जैसा है, दिखता है, बट दैट्स पेसमेकर। तो आपको पेशेंट का ये जो उसका जो पास्ट इलनेस का हिस्ट्री में वो आ जाएगा, ठीक है, या सर्जिकल हिस्ट्री में आ जाएगा, मैं अभी बोलूंगा, ठीक है, कि वो बोलेगा कि मेरा हार्ट का प्रॉब्लम था या अभी भी है, मेरा पेसमेकर इतना दिन से चलता है, तो that will come under this history only। and also past illness हो गया, then what should you come to medicinal history। सो बाप मैं अपना आपका जो इतना जो डिजीज आपको कह रहे हैं, ये जो दिक्कत आपका 2 महीने से हो रहा है, उसका पहले भी आपका ये था, आप कोई दवाई कंटिन्यूअसली खाते हैं, शुगर, प्रेशर, थायराइड, एनी दवाई यू टेक, सो मेडिसिनल हिस्ट्री, ओके। एनी काइंड ऑफ एंटीप्लेटलेट, एनीथिंग, एनी काइंड, विटामिन आयरन एसिड, फॉलिक एसिड टैबलेट हो सकता है, विटामिन टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दवाई खा सकता है वो, आयुर्वेदिक खा सकता है, होम्योपैथिक खा सकती है, काफी लोग खाते हैं, 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन टेक्स आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक, बट कम्स टू एलोपैथिक ओनली व्हेन दे आर इन पेन। सो तुम घर में देखोगे नहीं खाएंगे वो एलोपैथिक, एलोपैथिक तब खाएंगे जब बिस्तर से हो, नहीं उठ पा रहे, यही तो हमारा काम और भी दिक्कत भर कर देते हैं। पहले होम्योपैथिक वो सब लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं, अभी तो उतना हालत सही है, चल रहा है, एलोपैथिक आयुर्वेदिक लेने दो, अब बिस्तर में गिर गए तब बोल रहा है एलोपैथिक डॉक्टर बुरा है, वो सही नहीं कर पा रहा है, अब हम क्या करें, आप इतना दिन तो मिस ट्रीटमेंट किए हो। एनीवे मेडिसिनल हिस्ट्री लिखो, ये सब आपको भी पास में आपका जो रिलेटिव है उन सब लोगों को भी समझाना है कि हम खाना को उतना वक्त ही बचा सकते हैं ना, जितना वक्त आप मुझे दिए हो, अब खराब होने के बाद आओगे बोलोगे खाना सही कर दो, कैसे करेंगे, दिक्कत लगेगा, टाइम लगेगा, तो टाइम दीजिए, तब उनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि तबीयत इतना बिगड़ जाता है, सच में उनको तकलीफ भी होता है। तो मेडिसिनल हिस्ट्री हो गया, मेडिसिनल हिस्ट्री हो जाएगा तो आप क्या पूछोगे नेक्स्ट, सर्जिकल हिस्ट्री, एनी काइंड ऑफ सर्जरी डन इन द पास्ट, कोई नो সার্জারি প্ল্যান হয়েছে, পেন্ডিং আছে, এনিথিং, সো সার্জিক্যাল হিস্ট্রি। ओके, कई कई लोगों का होता है कि स्ट्रोक हो गया है इस बार, तो पहली बार कितना बार स्ट्रोक हुआ है, उस बार कौन सा अस्पताल में थे, स्ट्रोक हुआ है मतलब कुछ दवाई उनको कंटिन्यू चल ही रहा है, तो क्या क्या दवाई आपका कंटिन्यू चल रहा है, ये सब कुछ आपको लेना है। तो मेडिसिन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका रनिंग दवाई जो चल रहा है उसका साथ तुम कुछ दवाई चलाने जा रहे हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है, लाइक लेट मी टेल यू, वन पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम एज्मा, ओके, he didn't tell me and I forgot to ask, I asked generalized questions, very good। তো इधर पे आपको पूछने के, अच्छा ठीक আছে, এখানে অ্যাপিয়ারেন্স ওখানে ওখানে জিজ্ঞেস করে নেব, ওকে। তো মেডিসিনাল হিস্ট্রিতে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করবে, একটা হচ্ছে মেডিসিনস and the other thing is comorbidity। comorbidity मतलब any kind of disease like hypertension, okay, हाइपरटेंशन हो गया, शुगर हो गया, उसके साथ आपका और कुछ क्या क्या आता है कोमोर्बिडिटीज में, एज्मा, ये सब डिजीज, ओके। कोमोर्बिडिटीज मतलब और दूसरा कुछ डिजीज, कोमोर्बिडिटीज, मॉर्बिडिटीज मतलब सम डिजीजेस व्हिच कैन किल यू, मॉर्बिडिटीज, मॉर्बिडिटीज, ओके। बट कोमोर्बिडिटीज मतलब दे आर विथ यू फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, you are taking drugs or medicines for that, okay, so that's why they are called comorbidities, मतलब आप हो उसके साथ आपके साथ वो प्रॉब्लम भी है, तो any kind of comorbidities।
कोमॉर्बिडिटीज, एंड उसके लिए आप क्या दवाई खा रहे हो. ओके, सो यू आर आस्किंग योर मेडिसिन बट यू ऑल्सो नो अबाउट द कोमॉर्बिडिटीज, देन कि दवाई क्यों ले रहे हो. वो बोल रहा है कि सर मैं डुओलिन एंड बुडेकॉट लेता हूँ. सो मैं जानता हूँ कि वो इसके लिए लेता है, एस्मा के लिए लेता होगा या इनहेलर उसके लिए लेता होगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा. हो सकता है कि एस्मा नहीं है, सीओपीडी है. कैसे समझोगे? पूछना पड़ेगा. বাবা এটার জন্যই নাও তো, কিসের জন্য নাও, কে দিয়েছিল, কোন ডক্টর দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল, হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা কতদিন আগে দিয়েছিল, দ্যাটস অল কামস আন্ডার হিস্ট্রি, রাইট? কোন ওষুধ কতদিন ধরে খাচ্ছে, মেডিসিনের আন্ডারই আসবে. ওকে, সো মেডিসিনে কোমরবিডিটিস আর মেডিসিনস, রাইট? কোমরবিডিটির কথাটা আমি বললাম কারণ এই বিপির ব্যাপারে বলতে বলতে আমার মনে পড়ে গেল. এনিওয়ে, এইসবও জিজ্ঞেস করবে. তার আর হ্যাঁ, ওই যে বললাম হার্টের প্রবলেম বলছিলাম যে পেসমেকার ওগুলো সার্জারির মধ্যে পড়বে. প্রিভিয়াসলি কোনো অর্থোপেডিক কোনো রাস্তায় বাজে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, প্লেট বসে আছে কোথাও, সবকিছু তোমাকে জানতে হবে. ওগুলো সব সার্জিক্যাল হিস্ট্রির মধ্যে পড়বে. কোথাও প্লেট বসে আছে, আগে কখনো থাইরয়েড অপারেশন হয়েছিল, এনি काइंड ऑफ ऑपरेटिव हिस्ट्री इज कम्स अंडर सर्जिकल हिस्ट्री. ये सब आपको लेना पड़ेगा. सर्जिकल हिस्ट्री के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा? नाउ वी मूव ऑन टू ए लिटिल बिट ब्रॉड. सो এটা মুছে দিয়ে দিকের গুলো. सर्जिकल हिस्ट्री पढ़े आपको उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पता करना पड़ेगा. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड रेसिडेंस, उसका घर कहाँ है. ओके, सो मैं ऐसे देखो किसी का छोटा या बड़ा करने का बात है नहीं, पर द जनरल एनवायरनमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिडेंसेस. सोचो आपको कोई पूछे कि कहाँ रहते हो, या आप एक पेशेंट को पूछे हो कि कहाँ रहते हो, वो बोल रहा है कि हमारा घर है अपना एक तल्ला, या हम भाड़ा रहता है इधर. हाँ, तो कैसा घर है जी? एक तल्ला घर है, ब्रिक का मेड अप है, घर पूरा कंप्लीट है, इट्स ओके. सो उसका रेसिडेंस या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपका कुछ आइडिया पड़ गया होगा. रेसिडेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मुझे एक्सप्लेन करना नहीं होगा शायद, आपको तो पता होगा इसको मतलब क्या है. सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस. इकोनॉमिक मतलब पैसा. ओके, रेसिडेंस. लेकिन कोई कहता है कि सर मैं बस्ती में रहता हूँ, मेरा घर छोटा सा वो है, कपड़ा वपड़ा देके रेल लाइन का पास में जो झोपड़ी है उसमें रहते हैं. सो जनरली अंडरस्टैंड, ऑटोमेटिकली यू विल थिंक अबाउट कि अच्छा फिर इस आदमी का जो स्किन इन्फेक्शन उनके चांसेस काफी ज्यादा है, रेल लाइन के पास रहता है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, कंटिन्यू आवाज सुनता है. तो कुछ कुछ चीज तुम्हें प्रीरिक्विजिट तुम्हारा दिमाग में फैल जाएगा. इसलिए इंपॉर्टेंट है जो लोग अपना पक्का बाड़ी रेसिडेंस मतलब ये पक्का घर आपका पक्का है या कच्चा है, कच्चा घर में काफी दिक्कत हो सकते हैं, वो सब आपका डिजीज में. ओके, उसको जज करना है, लेकिन उसका तबीयत जज करना है. उसका क्यों वो कच्चा में रहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैं पूछ सकता हूँ কেন তুমি কেন থাকছো, কেন ইমপ্রুভ করছো না. কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম आई विल नॉट डू हिज कैरेक्टर एनालिसिस बिकॉज आई एम ए डॉक्टर. ओके, सो ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिव के ऐसे करने से तो आपका ये सब फैल जाएगा. कोई एक बड़ा हाइड्रेन है, उसके पास किसी का घर है, तो उसका मच्छर का उसको काटने का चांस काफी ज्यादा है. ओके, जैसे वेस्ट बंगाल में तुम देख रहे हो काफी एरिया में मलेरिया डेंगू उतना फैलता ही नहीं है, बिकॉज साउथ कलकत्ता में मलेरिया डेंगू पहले उतना नहीं फैलता था, लेकिन अब फैल रहा है. किसी जगह से तो दिक्कत हो रहा है. तो रेसिडेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज आर प्रीरिक्विजिट्स. तुम देखोगे ये मैं रेसिस्ट बात नहीं मतलब कर रहा हूँ, ये लीगल है. मतलब जो लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है उनको जनरलाइज्ड डिजीज काफी कम होते हैं, जस्ट बिकॉज दे रिमेन प्रॉपर हाइजीन. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका कम है वो जितना भी चाहे वो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकता, बिकॉज इवन इफ दे आर क्लीन एंड ऑल, देयर होम्स समटाइम्स मे गेट डार्टी बिकॉज वो स्मॉल है, क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उनको काफी बाहर काम करना पड़ता है. हाँ, bring back unnecessary and unknowingly many germs with them, they don't know about even. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम होता है तो अक्सर देखना उसका वो जो आईक्यू कम नहीं बोल रहे हैं, बट उसका एजुकेशनल स्टेटस भी बहुत कम होता है. दैट्स व्हाई हिज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज लेस. एजुकेशनल स्टेटस कम होगा तो आपको जितना ज्ञान होगा डिजीज के बारे में, डिजीज का सीक्वेंसेस, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उनके पास उतना नहीं होगा.
सो ऑटोमेटिकली इसका नॉलेज कम है, उसको इफेक्ट करने का वो ज्यादा होगा. So these are very important thing for us, very important thing. Lower socioeconomic status people will tend to get into drugs easily. Okay, কেননা অভাব দুঃখ বাড়িতে কি করবে, ওর কাছে ওটাই एंटरटेनमेंट. बट यू हैव ए लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, यू हैव पीसी कंसोल, तुम खेलने लग गए, उसके पास पीसी कंसोल नहीं था वो हेरोइन लेने लग गए, हो सकता है. ओके, वो नीडल करने लग गए. सो ये आपका इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट उसका हैबिट के बारे में पूछना है क्या, फूड हैबिट. और ये जब हम तुम पूछोगे ऑटोमेटिकली उसका फूड हैबिट, डाइटरी हैबिट तुमको कुछ समझ में आएगा. जिसका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका फूड हैबिट या डाइटरी हैबिट थोड़ा कम होंगे. रिच पीपल, नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल, उनका फूड हैबिट अच्छा ही होता है, फूड हैबिट अच्छा होता है. बट फूड टेकिंग हैबिट की भी आपको, डाइटरी हैबिट आपको पूछना है, ये एक ही मीनिंग होता है. ओके, तो मैं जो बात कर रहा था अभी न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात कर रहा था, जो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस में कम हो सकता है. न्यूट्रिशन शायद उनका कम है लेकिन उसका फूड हैबिट ओके हो सकता है. रोज वो दोपहर को 1:30-2 बजे के अंदर खा लेते हैं, रात को 11 बजे के अंदर खा के सो जाते हैं. नाउ दिस न्यूट्रिशनल स्टेटस, इंटरेस्टिंगली न्यूट्रिशनल स्टेटस इज सीन very good among middle class and upper class people, but the food habit is often very bad because lower economic society में स्टेटस में क्या करते हैं, वो कुछ नहीं खाते, वो चावल खाते, दाल खाते, एक हेल्दी सब्जी खाते, हो जाता है. एक डिम या एक मछली का पीस अगर उनको मिले, ठीक है, चिकन उनको उतना नहीं मिलता है, बट द न्यूट्रिशनल हैबिट मे बी ए लिटिल बिट लेस, बट देयर फूड हैबिट इज वेरी गुड. अच्छे टाइम पे खा लेते हैं, उनको रोज सुबह काम करना पड़ता है, दे ऑल्सो रिमेन एक्टिव वर्कर्स. ओके, सो उनका फूड हैबिट वेरी गुड होता है, उनका न्यूट्रिशनल हैबिट थोड़ा कम होता है. लेकिन जितना हम लोगों की तरह मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास देखोगे, हम लोग को परवाह नहीं पड़ते, रात 1:30 बजे खा रहे, 4 बजे खा रहे दोपहर को, तो आवर न्यूट्रिशनल, हम क्या खा रहे, चिकन खा रहे, मछली खा रहे, अंडा खा रहे, हमारा पनीर खा रहे, हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस ज्यादा हो सके, लेकिन हमारा फूड हैबिट बहुत बुरा है, बहुत बुरा है. ठीक है, हमको सुबह काम करना नहीं है, अभी जाएंगे रात 1:30 बजे खाएंगे, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस में भी गुड, मैं खा रहा हूं उनके से बहुत अच्छा खा रहा हूं, लेकिन मेरा फूड हैबिट इज वेरी 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 बैड. ओके, गैस्ट्राइटिस, ये सब अपर मिडिल क्लास लोगों में इतना ज्यादा फैल क्यों रहा है. ऑलमोस्ट एवरी one around 22 to 26 to 30 years of age suffers from gastritis, some chronic, some occasional, and some have very tendency. আগে এরকম হতো না, ছোটবেলায় কত লুচি ফুচি এদিক ওদিক খেতে পারতে, এখন 2টো লুচি 5টা লুচি বাইরে একটু বেশি খেয়ে নিলে মনে হয় পেট খারাপ হবে না. তো ফুড হ্যাবিট আমরা মেনটেন করিনি, কিন্তু তোমরা যারা रेगुलर काज करे, जो लोग बहुत काम करते हैं, वो लोग करते हैं, उन लोग देखोगे वो खा लेता है, उनके पास कुछ नहीं होता है, because their body has that much power, because their food habit is very good, that's why their body is maintaining themselves. Okay, so nutritional status, so these two are interlinked but not necessarily proportional. ओके, अच्छे तो वो लोग हैं जिनका फूड हैबिट भी अच्छा है और स्टेटस भी अच्छा है, लेकिन मेंटेन करना काफी टफ होता है. एनीवे, न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको मिल गया, फूड हैबिट और डाइटरी हैबिट आपको मिल गया. फूड और डाइट इनपुट अगर आपको ले लिए हो तो आउटपुट को भी हिसाब लेना पड़ेगा, जिसका मतलब है बावेल एंड ब्लैडर हैबिट. बावेल एंड ब्लैडर हैबिट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ब्लैडर हैबिट में डिसयूरिया, पेशाब ठीक से नहीं हो रहा, पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा, ये सब का इंडिकेशन है. कम हो रहा है मतलब किडनी का दिक्कत हो सकता है, ओके, यूरिनरी ब्लैडर में दिक्कत हो सकता है, एंड ज्यादा हो रहा है मतलब डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस में पेशाब ज्यादा होता है. ओके, बावेल एंड ब्लैडर हैबिट. और भी हो सकता है उसका यूरिटरी स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा जब एज हो जाता है तो काफी ब्लैडर लीक होता है, तो बावेल एंड ब्लैडर हैबिट आपको एसेस करना पड़ेगा. नर्व प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, काफी लोगों का पेशाब नहीं रुक रहा. ओके, बावेल हैबिट, बावेल भी आपको देखना पड़ेगा, पायखाना क्या मोनो है, कलर कैसा होता है, अच्छा होता है क्या नहीं, ओके, कॉन्स्टिपेशन है क्या नहीं, आपको कुछ अलग तरीके से पानी एक्स्ट्रा पीना पड़ता है, खाना पड़ता है, कुछ दवाई, तब जाके अच्छे क्लियर बावेल होता है, ये सब आपको हिसाब करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये होता है आपका बावेल एंड ब्लैडर हैबिट. एंड बावेल एंड ब्लैडर हैबिट के बाद आपको हाइजीन तो मैंने कह ही दिया था, वापस लिख लो, शायद ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, सही कर लेना. एंड उसके साथ आपका
डिहाइड्रेशन में पहले बता दिया था, हो गया था, डिहाइड्रेशन हो गया था। नाउ वन थिंग, वो मैं बाद में जब याद आया मुझे कि वो मैं पहले नहीं लिखा था, दैट्स you know when you are a girl, of course, and another is family history, right? ये मेरा पॉइंट में भूल गया था, इसीलिए मेरा अलग तरीके से लड़के लोगों का सोचना पड़ रहा था। When you are asking about family, जे एस छे वो अकेला रहता है, उसको देखने के लिए कोई है क्या नहीं, इसके वजह से आप हिसाब कर सकते हो कि हाउ मच ही इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है। कोई 40-50 साल का आदमी बेटे बेटी पोता पोती के साथ रहता है, उनका जो देखभाल एक जो अकेला आदमी रहता है 50 साल की उम्र में, उनसे काफी अच्छे होंगे। उनका हिस्ट्री भी लेने के लिए आपको दूसरा ओपिनियन है, इनका कोई नहीं है, तो इसको आपको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा कि अननोन हिस्ट्री, राइट। तो फैमिली हिस्ट्री ना, फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन एंड वुमेन। মেনের ক্ষেত্রে তো আমরা কোনো প্রবলেম নেই বলে দিলাম, বাট ফিমেলের ক্ষেত্রে তোমাকে ওদের ফ্যামিলির সাথে সাথে আরো কিছু নিতে হবে। ना व्हाट इज द थिंग जो फीमेल में होता है मेल में नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो आपका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर लड़की है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेना पड़ेगा टू असेस इफ शी इज प्रेग्नेंट और नॉट। তাহলে নাও ফ্যামিলি হিস্ট্রির সাথে মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি, মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি फैमिली हिस्ट्री মধ্যে চাইল্ড চলে আসবে, ओके, इसके अंदर चाइल्ड आ गया, चिल्ड्रन आ गया, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आपका सिर्फ मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या क्या लोगे, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के अंदर क्या क्या पूछोगे, कितना दिन होता है, डेज, ड्यूरेशन बाय डेज, डेज ड्यूरेशन, अमाउंट, कितना अमाउंट होता है, एंड क्लॉट्स प्रेजेंट या नॉट, कोई टाइप का क्लॉट रहता है या कंटिन्यूअस फ्लोइंग ब्लड निकलता है, एंड व्हाइट इज डिस्चार्ज है क्या नहीं। कोई व्हाइटिस डिस्चार्ज मतलब उधर पे कैंडिडियासिस वो सब का कुछ दिक्कत हो सकता है, उसके लिए व्हाइटिस डिस्चार्ज हो सकता है। हाँ, तो डेज ऑफ ड्यूरेशन, अमाउंट, क्लॉट्स, व्हाइटिस डिस्चार्ज, एवरेज साइकिल, तो ये ब्लीडिंग का हिस्ट्री हो गया। नाउ अनदर इज मेंस्ट्रुअल, विदाउट ब्लीडिंग एवरेज आपका साइकिल कितना होता है, कितना दिन का। हाँ, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था, LMP, if it's more than 1 month, ask about if she has done a pregnancy test or not. So last menstrual period LMP, लड़की लोगों के लिए मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना भी बहुत जरूरी है। एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री अगर लोगे तो इफ ही इज शी इज मेनोपॉजल और ऑफ फर्टिलाइजिंग एज, कौन सा मेनोपॉज हो गया है, फर्टिलाइजिंग एज हुआ है, या शुरू ही नहीं हुआ है, बच्चा है 11 साल का है, 10 साल का है, वो आपको देखना पड़ेगा। किसी का 12 साल का है तो आपको पूछना पड़ेगा कि তোমার কি ওখানে রক্ত বেরোনো শুরু হয়েছে, ওকে, এরকম ভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে যে তোমার কি মাসে মাসে রক্ত বেরোয়, because she doesn't understand anything about pregnancy yet, and in case of a menstruation or pregnancy yet, and in case of our society parents will not tell such things. I don't know, आप लोगों का शायद पेरेंट्स लोग थोड़ा बहुत मॉडर्न होंगे, हमारे मम्मी पापा तो उतना मॉडर्न थे नहीं, वो अवॉइड कर जाते थे until and unless the girl comes and asks कि মা আমার না এরকম হচ্ছে, কি হয়েছে বলো, তখন মা বলছে, আগে থেকে বলে রাখেনি, মেয়ে বুঝতেই পারছে না কি হচ্ছে, ভয় পেয়ে গেছে, বলছে রক্ত বের হচ্ছে কি প্রবলেম, অ্যাকচুয়ালি ওটা হচ্ছে মেনস্ট্রুয়েশন, নরমাল সাইকেল, বাবা মা বলেনি, কনজারভেটিভ সোসাইটি আমাদের ইন্ডিয়া আছে, সো মেনোপজাল আছে না, ফার্টিলাইজিং এজে আছে না, এখনো শুরু হয়নি, ওকে, সেই রকম মানে পিউবার্টি বিফোর অথবা বিফোর পিউবার্টির আছে কিনা, তো এই কোন এজে আছে, ওর মেনস্ট্রুয়েশন হচ্ছে মানে ফার্টিলাইজিং এজেই আছে, ঠিক আছে। তো মেনোপজালও হতে পারে, বন্ধ হয়ে গেছে কিনা মেনোপজ, সেটাও তোমায় জিজ্ঞেস করতে হবে, ওকে। এনিওয়ে, তো এই হচ্ছে মেনস্ট্রুয়েশন হিস্ট্রি, মেয়েদের ক্ষেত্রে এক্সট্রা নিতে হবে, যেটা তোমার এখানে ইনপুট করতে হবে। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जनरल इन्वेस्टिगेशन। नाउ बहुत पॉइंट है, ये सारा चीज आप देखोगे नाउ आपके पास एक वो आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इतना कुछ सुना हो, इतना कुछ लिखा हो, तो इट्स सजेस्टिंग दैट उसका ये हो सकता है। नाउ यू गो फॉर सिस्टमिक एग्जामिनेशन, जो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। वो जो 4 पॉइंट में लिखा था, इंस्पेक्शन देख रहे हो, पैल्पेशन उंगली से कर रहे हो, परकशन यू आर मेकिंग साउंड्स ओवर डिफरेंट थिंग्स,
यू नो एंड असेसिंग दैट साउंड। क्योंकि एक बात कहते हैं जैसे लंग्स में नॉर्मली क्या रहता है, हवा, एक अलग तरीके का साउंड होता है, देखो डल टाइप का साउंड होता है। जब भी इधर पे पानी आ जाएगा ना, उसको प्लूरल रिफ्यूजन कहते हैं, वो साउंड चेंज हो जाएगा। पानी आ गया एक हॉलो जगह पे तो रेजोनेंस होगी, तो रेजोनेटिंग साउंड आएगा, ठीक है। तो वो सब के लिए परकशन। फिर उसके बाद परकशन ऑस्कल्टेशन। नाउ तुम फाइनली स्टेथो से सुनो, ओके। तो वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा जब अलग अलग सिस्टम अलग अलग से करवाया जाएगा, ठीक है। नाउ ओके, बेसिक क्या है, बेसिक पैलर इक्टेरिया साइनोसिस क्लबिंग मैंने बता दिया कैसे कैसे कहाँ देखना होता है। गो टू यू नो व्हेन यू गो टू होम जस्ट वंस चेक यूट्यूब, उधर पे बिल्कुल अच्छे से दिखा हुआ है। बिकॉज मैं एक बार इधर पे दिखा दूंगा, तुम घर जाके रिकॉल नहीं कर सकते, यू हैव टू सी एन एग्जाम्पल। यूट्यूब चलाना, उधर पे जैसे जैसे कर रहा है बिल्कुल वही करना, ठीक है। मैं तो इधर पे दिखा दिया हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट रिमेम्बर बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास, ठीक है। यूट्यूब देखना, वो जो जो पॉइंट लिखा हो कैसे कैसे, हाउ टू चेक फॉर इडिमा, हाउ टू चेक फॉर यू नो एनी स्वेलिंग, हाउ टू चेक फॉर लिम्फ नोड्स, ओके। ये सब करके वो एक बार देख लेना एंड या, ठीक है, चलो।